because they see the money, they don't see the larger picture, they don't see the larger goal and their, welfare of their people. They just think about themselves and their lives. That is why they peddle these things. So I think it's about time we call it out and we stop it. This is what I wanted to say. Thank you. Oh, by the way, thanks for giving me the term conflict entrepreneurs. Parth bhai, I know. It's actually a term I coined. Okay. Parth bhai, if you don't mind, Ayush is the moderator. So if Ayush, आपको अगर कुछ कहना है तो आप पार्थ से पहले जा सकते हैं. Then he'll go to Parth and then Kailash. Yeah, sure, sure, Desert. Bhai, thank you so much. Well, just the thing about the title of the rooms makes ultimately the real thing out here that farmers fund Khalistani lost. One of the major problems with the with ultimately with the agitation that the farmers have been shown, they were actually not showing the reality that they have been suffering. Rather, it's ultimately the other strings that has been connected to, a strings of Khalistani, a strings of separatists, and that you cannot afford to. And that has been the interest that has been going around, where Western interests were seeing that there were certain turbulences that has been looming around India, and they ultimately want to rift India internally, rift India by ultimately polarizing the people by giving them a specific money, creating the specific divide among the society. And that has been the major reason that why farmers protest. Many people do not actually know that what many people were actually not able to differentiate that what was the reality. Does the farmers, that those who were agitating near the Delhi border or the Singhu border, was it the actual reality that has been happening, or it is the separatist approach that has been laid down into? But to be very frank, it is ultimately the separatist approach. So we need to remember one thing, that of certain problems we need to realize that we have suffered. India has been that country which has suffered in the past with the separatist behavior. We know what it takes to ultimately bring all country into one bucket back in the year of 1947, and we could not afford another in the 21st century where the problems are more. We have certain problems of our own, and we cannot afford to ultimately lay down or to bring some other problems in the terms of separatists. So that has been one thing. Now, to be very frank, I want to be a bit pragmatic, and I want to say that look, a country like India, specifically the present regime that has been into, they want certain changes. And knowing the fact that with time you need certain changes that are being put into, certain changes in the form of economy, certain changes in the form of agriculture, because with the time you want changes to be altered with the time, where you can ultimately make out the maximum efficacy. The major output of introducing the farm law was to make a great efficacy out of it, or to ultimately modernize our agriculture system, where the agriculture system must not be rigid, and it must be flexible with the open market. It must be flexible with the farmers, where farmers must have that independency to use the APMCs. But again, we all know that how ultimately a strings of separatist behavior or ultimately what been used in this, and we suffered. But one thing that we need to realize, that decision that government has made, it is ultimately a pragmatic decision, and we must not take it as a decision that has been created and it has ultimately benefited the farmers. Yes, it has benefited the farmers, but again, it haven't benefited the Khalistani, or it hasn't benefited the separatist people out there. We need to realize that we want peace and stability, and if you want to develop a country like India, who is ultimately has this urgeness to develop, you want to have this internal stability inside, and it is one of those approach that government has been opting to. So we must take it as a negative. We must take it as a pragmatic approach, but not basically in terms of creating rift and divide among the peoples. Thank you so much, Desert Bhai. We'll move further into the PTR. Yeah, very well said, Ayush. Yeah. We are coming to you. Parth, you were next in the PTR. Then we'll move ahead with Raj and Kailash. Okay. कैलाश के बाद लव की बारी. लव, आपने जो बोलना है ना यहाँ बोला, पीछे बैक चैनल मत. Can I speak? हाँ पार्थ. Yeah, Parth, please go ahead. Thank you for the opportunity. First of all, happy Gurpurab Day for everybody, for everyone who is celebrating it. This is my thought. These are my thoughts. I think we are less than a week away from the 26/11 anniversary. Just think about it. 2 days ago, the US has given a new travel advisory for India, warning people of potential terror attacks in India. If you want, I can send the link. Connect these two dots. All it would take, given that these farmers' protests have been heavily infiltrated by foreign elements, all it would take is one mad suicide bomber to create enough damage to ruin not just Modi's credibility, not just the government's credibility, ruin India's image.
I think there is some intelligence that has come in which we are not privy to, which I don't think the government of India is in a position to declare that intelligence, and it is based on this intelligence. This announcement was made to make sure that these protests don't lead to something really disastrous for the country as a national security concern. Jai Hind, thank you very Indeed, Parth. Thank you so much. Well, yeah, moving further into the PTR, we have Raj. Yeah, Raj, over to you. Raj, you around? Yeah, I'm here. बस मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहूँगा मैं ये You are not audible. Come closer to the mic, Raj. You are not audible. हेलो are Yeah. you listening? हेलो Yeah, still not audible. Let's do one thing. हेलो Let's. हेलो Yeah. सुन रहा है? थोड़ा तेज बोलो राज, थोड़ा तेज। हाँ, ठीक है। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आई एम लिविंग इन पंजाब, तो मैंने क्या नोटिस किया कि 26 जनवरी को ऑलमोस्ट जब इन्होंने खालिस्तानियों ने ये सब किया था तो ये आंदोलन ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। उसके बाद वहाँ हेलो Raj, let's do one thing. Let's refresh yourself. Till then, we'll move further into the PTR to Kailash. राज आप एक काम करिए, आप अगर कोई हेडफोन यूज कर रहे हैं या कोई ब्लूटूथ सेट यूज कर रहे हैं, है ना, तो आप फोन का ही माइक्रोफोन यूज कीजिए, है ना, तो शायद आपकी आवाज ज्यादा ऑडिबल हो। इज इट फाइन नाउ? हाँ, अब ये बेटर है। हाँ, अब ये बेटर है। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आई एम फ्रॉम पंजाब, तो मेरे ख्याल से जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, बड़े फर्स्ट डे से देख रहा हूँ इस आंदोलन को, तो 26 जनवरी को ऑलमोस्ट आंदोलन खत्म हो गया था, ठीक है, क्योंकि हाफ इन्होंने खत्म कर दिया था। जो इन्होंने खालिस्तानी झंडा वहां लाल किले पे लहराया, उसके बाद वहां रेप्स हुए, अभी कुछ दिन पहले वहां पे एक बंदे को मार दिया। उसके बाद भी आंदोलन इतना कमजोर होने के बाद भी मोदी जी ने अगर ये लॉज वापस लिया, तो मैं जरूर कोई ना कोई नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न होगा उससे उससे जुड़ा हुआ। क्योंकि आप देखो, थोड़े दिन पहले अजीत डोभाल जो एनएसए हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया कि ये सिविल वॉर चल रही है। अभी जरूरी नहीं कि हथियारों से जंग लड़ी जा रही है, कुछ चीजें कंट्री को कमजोर करने के लिए उसके ही सिटीजन्स को भी यूज किया जा रहा है। तो मेरी एनालिसिस है, मे बी उन्होंने इसलिए वापस ली हो। जो शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि ठीक है हम हार गए हैं, डेमोक्रेसी हार गया, बट लॉन्ग टर्म मेरे ख्याल से इसका फायदा ही होगा देश को। उन्होंने भी कुछ सोच समझ के ये लिया होगा। गवर्नमेंट ने भी इस आंदोलन से बहुत, हमें लग रहा है कि नहीं, कल को ये गवर्नमेंट अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी, कल को फिर आंदोलन होगा, बट गवर्नमेंट ने भी इससे काफी कुछ सीख लिया होगा कि कल को अगर कोई आंदोलन होता है उसको कैसे खत्म करना। लाइक जैसे यहाँ बाहर से फंडिंग आ रही, कोई यूएस में कोई मिस्टर धालीवाल है, उसकी 1000 ऑफ गैस एजेंसीज है, लाइक जैसे यहाँ पेट्रोल पंप है, वो थोड़े दिन पहले यहाँ इंडिया आया था, वो काफी फंडिंग, उसने काफी हैवी फंडिंग की है, तो उसको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया। और वो बंदे की जॉर्ज बुश के साथ पिक्स हैं और काफी फेमस है वहां पे, पर उसको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया। ऐसे एक बंदे को, स्पेन के बंदे को वापस भेजा। तो गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल से काफी कुछ सीखा है कि आगे अगर कुछ करना है तो कैसे करना है। तो बस हेलो, क्या सीखा है? यही गवर्नमेंट ने मेरी एनालिसिस है, गवर्नमेंट यही सीखा है कि अगर कल को कोई लॉ लाना है तो उसके लिए मतलब कि पहले क्या क्या प्रेपरेशन है। गवर्नमेंट को नहीं पता था कि 1 साल चला जाएगा, बाहर से फंडिंग आएगी, ये होगा वो होगा, जो अंदर से देश को कमजोर करने की शाहीन बाग में तो देखे थे। कैलाश आप अपने टर्न का वेट करिए, ठीक है? नहीं ठीक है, वो इट इज नॉट AMA विद राज, है ना, तो वो अपना ओपिनियन रखेंगे, फिर आप अपना ओपिनियन रखिए। Raj, are you done? Okay. Just land your point in next 30 seconds, Raj. Okay. Then we'll move ahead with the. राज का हो गया। Okay, in that case. बात रखो। नहीं, मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाहता था कि what does the government learn from this so-called किसान आंदोलन? और ऐसा क्या चीज है जो शाहीन बाग में सामने नहीं आया था? वहां पे भी ये नौटंकी चली थी, ये भी नौटंकी चली है। और जहां तक मैं देख रहा था कि लास्ट कुछ दिनों में तो मतलब इट वाज फिजलिंग आउट, तो फिर क्या जरूरत थी ये फार्म लॉज वापस लेने की? आई डोंट अंडरस्टैंड। मे बी इट इज गॉट सम पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस, ये ओनली टाइम विल टेल, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, मुझे फार्मर से कोई लेना देना नहीं। वो वैसे भी पहले भी की जो हालत थी वो कोई खास नहीं है, आज भी they are not going to be any better off. Okay, so if they had nothing to lose, this farm laws wouldn't have made their lives any more miserable. That's what I feel about the farm laws.
My problem is with the Khalistanis, and I think we have been treating them with kid gloves. इन लोगों को आड़े हाथे लेने का टाइम आ चुका है. I think Modi government has to develop the balls to tackle this problem. Call a spade a spade. जब भी उन लोगों ने लाल किला पे वो झंडा लगवाया था उनके खालिस्तानी सोकॉल्ड स्टेट का, उसी टाइम पे अगर कोई कड़ा एक्शन ले लेते, अगर they would have put the perpetrators behind bars, then you know the movement could have been stifled. But they have been allowed to go on for far too long. This cannot be solved so easily. इसको kid gloves से तो नहीं कर सकते हैं. India has to take a very firm stand. Anybody who talks about breaking the country apart is a bloody terrorist and he has to be treated under UAPA laws. Period. उसके सारे फंडिंग, उसके सारे बैंक अकाउंट सारे फ्रीज कर देने चाहिए. वो और उसके रिलेटिव्स, they should all be taken off for questioning. हम लोग क्यों इनके ऊपर इतनी रियायत दे रहे हैं? I don't understand. इनको we are treating them like spoiled brats. There's this guy who comes, he might be a taxi driver in Canada. He comes over here and he says India is a shithole country. On what ground? India is the bloody fourth largest manufacturing economy in the world. What does Canada do? They are first world countries, okay, but look at our history. We have had only 1,000 years of slavery. We are emerging from that and we did pretty well for ourselves. Thank you very much. And ये पंजाब स्टेट जो है ना, I think it's a bloody overrated state thanks to bloody Bollywood. वहाँ का पर कैपिटा इनकम का जरा एक बार देख लो, गरीब स्टेट है ये. अरे कोई कैलाश industry कैसी है. बातें कर रहे हैं? नहीं आई नीड टू नहीं आई उनका पर कैपिटा इनकम नीड देखा है आपने? अरे इवन इफ उनका पर कैपिटा से क्या लेने देना कैलाश, वो हमारे स्टेट है भाई, ठीक है? उनका पर कैपिटा ज्यादा हो चाहे कम हो, वो हमारे स्टेट है. वी नीड टू वर्क ऑन दैट स्टेट ना. You cannot just come up and badmouth about this Punjab ka state because some shitty Khalistani come here and speaks shit about our country. इसका मतलब ये नहीं कि हम पंजाब स्टेट के बारे में करेंगे. This is not about पंजाब स्टेट versus Indian state ना. आप थोड़ा तो कैसी बातें करते हैं, मुझे समझ नहीं आता. और यही पीटीआर में आगे यही नहीं यही वो चाहते हैं खालिस्तानी, यही ट्रिगर करके ये कराना चाहते हैं. और ये यहाँ पर हमारे एक्सट्रीमिस्ट बोलने की अक्ल है नहीं क्या? पंजाब सिटी स्टेट क्या मतलब क्या? वो पूरे देश को बोल गया, वो खालिस्तानी बाहर बैठा और तुम अपने देश के टुकड़े को, अपने उसको हिस्से को बोल रहे हो कि ये है कि क्यों? मतलब लिटरली के कुछ नहीं है, पंजाब से कुछ नहीं निकल रहा, कोई आर्मी मैन नहीं निकल रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई देश की सेवा नहीं कर रहा. पागल, मतलब लिटरली बोलने की अक्ल है नहीं है. लिटरली पूरे पंजाब स्टेट में आप समझ के चलो, इतना हमारा जो अभी इंडियन हॉकी टीम जो ब्रॉन्ज मेडल जीत करके आया है, ठीक है, ओलंपिक्स में, आपको पता है कितने सारे उसमें पंजाब स्टेट के हैं? आप बिल्कुल ऐसा ब्लैंकेट स्टेटमेंट देने से बचिए प्लीज, है ना? ये और ज्यादा रिफ्ट क्रिएट करेगा यार. ऐसा नहीं बोलते, ठीक है? अब आगे चलते हैं. सुंदर वेट पीटीआर का वेट करो और फिर फर्क ही नहीं बचेगा. जब वो पूरे देश को टारगेट कर रहे हैं, गलत बोल के आप फिर पंजाब को कर रहे हैं, फिर फर्क ही नहीं बचा आप दोनों में. पीटीआर में आगे चलते हैं. लव अपनी प्लीज बात रखिए. लव हाँ सम्राट प्लीज. अभिषेक एक बार ये पीटीआर होने दो, फिर आप अपनी बात रख लेना. आवाज आ रही है भाई मेरी? हाँ सम्राट. यार पता है क्या चक्कर है यहाँ, मतलब इंडिया के लोग है ना बड़ा इमोशनल हो जाते हैं कि ये मोदी सरकार ने क्या कर दिया, हम इतना वो कर रहे थे, इतना वो साथ दे रहे थे, इनके लिए लड़ रहे थे. तो ये चीजें पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, ये होता रहता है. ये ज्यादा अभिषेक भाई आप प्लीज एक बार माइक. तो ये है ना, ये कुछ इसमें बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है ना? इसमें ये भी हो सकता है कि क्या पता कुछ और अच्छा इसमें आ जाए, इम्प्लीमेंटेशन हो जाए. और दूसरा यार देखो, जब आपके सामने कोई खीर रखी है ना किसी बर्तन में, और आपको फिर आप ये भी बोलो कि नहीं अब चम्मच से मेरे को खिलाओ भी, तो वो पॉसिबल नहीं है. तो किसानों ने ना खुद अपनी दुर्दशा के खुद जिम्मेवार होंगे, क्योंकि आजादी से अभी तक ऑटोमोबाइल सेक्टर देख लो, एफएमसीजी देख लो, रियल एस्टेट का देख लो, या टेक्सटाइल का देख लो, आईटी का देख लो, मैन्युफैक्चरिंग का देख लो, हर एक सेक्टर है ना इतना ऊपर गया. फार्मिंग जो भी कर रहा है या जो भी करता था, उसने है ना फार्मिंग परेशान होके या तो छोड़ दी है, या फिर वो फार्मिंग बस अब ऐसी कर रहा है कि बस उसके घर के खुद का और पशुओं के लिए उसके पास कुछ चारा वगैरह हो जाए.
और इसका रीजन ये जो सारी यूनियन बनी हुई है ना, ये जो राकेश टिकैत है, मैं भी जाट हूँ भाई, सोनीपत से हूँ। ये राकेश टिकैत जो जाट है, इसका वजन 112 114 किलो वजन है इसका। ये इतना मोटा आदमी खेती के लिए सुटेबल है ही नहीं। और इसने इसका कंट्रीब्यूशन क्या है भाई, फार्मिंग सेक्टर को इसने क्या दिया है? कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड इसने आके कुछ इस हिसाब से इन्वेंशन लेके आया है, कोई ऐसी टेक्निक लेके आया है, कोई ऐसी एडवांसमेंट लेके आया है। बुरा हाल है। पंजाब में आपको पता है जो पानी का जो वाटर लेवल है, हरियाणा में, अब मैंने ट्यूबवेल लगवाया है, ठीक है, मेरा खर्चा एक ट्यूबवेल का 6.5 लाख रुपए आया है। और वो ये हो सकता है कि 6 महीने के बाद मैंने 2-4 पाइपें और चौवे में, मतलब चौवा उसको बोलते हैं वाटर लेवल जो होता है जमीन का, और चौवे में 2-3 पाइप और भी डालने पड़ सकते हैं। 20 फुट का पाइप आता है एक। तो यार ये तो है ना, जैसे इनका भला ही होने वाला था, पर अब सबको इस देश में गरम गरम खाने की आदत है, सबको इंस्टेंटेनियस रिजल्ट चाहिए, सबको सब कुछ करना है, चुटकी बजाते ही हो जाना चाहिए। शायद फार्म लॉज के आने के बाद कुछ दिन कुछ हाहाकार रहता, कुछ परेशानी रहती, लेकिन एक बार देखना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्योंकि कोई भी सरकार है ना, एक कमरे में बंद होके लॉज नहीं बनाती है। उसके ऊपर पूरी रिसर्च होती है, पूरी टीम बनती है, और पूरे उसमें एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर रिसर्चर्स, मार्केटिंग, जो मार्केटिंग रिसर्चर्स होते हैं वो सारा होते हैं, सारी चीजें होती हैं। तो मेरे को लग रहा है ये अपने आप को इन्होंने आज ये जो ये मान नहीं रहे थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, सारी चीजें हो रही है। और जो हरियाणा में भी कुछ ये बैठ गए थे आके इन सरदारों के साथ, सरदार भाइयों के साथ। इनकी हर एक यहाँ पे हट बनी हुई है। मेरा जहाँ पे सिंगू बॉर्डर पड़ता है, मेरा यहाँ से लोकेशन 4-5 किलोमीटर का ही है। मैं भी खुद दिल्ली के आउटर स्कर्ट्स पे इस टाइम हूँ। तो हर एक इनकी हट के बाहर जो इन्होंने झोपड़ियां बना रखी हैं, वहां पे भिंडरावाला के पोस्टर ओपनली लग रहे हैं। तो इनका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो साफ विजिबल है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। पीछे से इनकी बहुत सारी प्लानिंग थी यार, कुछ सालों से बेचारे लगे पड़े थे खालिस्तानी। ये 2020 में सोच रहे थे रेफरेंडम आएगा, रेफरेंडम लेके आएंगे, और फिर 2020 में आ गया कोरोना, तो इनके सारे अरमानों पे पानी फिर गया। फिर उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई। अब कुछ मैं जानता हूँ, कुछ कनाडा में मेरे फ्रेंड्स हैं, तो वो बताते हैं यहाँ पे 3-3 शिफ्टों में सरदार काम कर रहे हैं, खालिस्तानी सरदार। एक शिफ्ट का पैसा अपने पास रखते हैं, 2 शिफ्टों का इंडिया में भेज रहे हैं। तो ठीक है, जो भी है यार, देखो अगर आपको किसी का साथ देना है ना, तो फिर ये छोटी मोटी चीजों में अपना साथ उससे पीछे मत हटाओ। इसमें आप मोदी सरकार को समझ लो या कांग्रेस को, जिसको भी आप सपोर्ट कर रहे करो, लेकिन दिल छोटा करना और इमोशनल होना कि नहीं यार मेरे तो अरमान टूट गए, मेरे तो सपने सजे हुए थे, और ये तो ऐसे मोदी ने करना नहीं चाहिए था, मोदी अनफिट है, योगी को आगे लेके आना चाहिए। कुछ ना कुछ इस पे होगा विजन। और मेरे को लग भी रहा है शायद चाइना के साथ हमारा जो है क्लैश भी हो सकता है। तो कुछ उस वजह से भी वो बॉर्डर से अच्छी सिचुएशन नहीं आ रही है, मतलब न्यूज है वहां पे क्या क्या सिचुएशन क्या नहीं है। तो पॉजिटिव रहो यार, ये चलता रहता है, देश बहुत बड़ा है। इससे कोई अपने आप पीछे जाना चाह रहा है तो लेट देम, ठीक है भाई, तू पीछे ही जा, तू पीछे बैठ के खुश है, तू पीछे ही बैठ, पीछे रहना चाहता है पीछे ही रहे। अब मैं एक डाटा बताता हूँ आपको, ये हर एक आदमी के आजकल जबान पे एक नाम चढ़ा हुआ है, अंबानी और अडानी। एक सेकंड रुकिए, मैं ना आपको एक सेकंड, मैं मेरा वो मत करना ब्लॉक, मैं ना फाइनेंशियल एडवाइजर भी हूँ छोटा सा। अब मेरे सामने ना रिलायंस की वेबसाइट खुली हुई है। रिलायंस ने सितंबर क्वार्टर में भारत सरकार को 5,500 करोड़ टैक्स दिया है। साल में 4 क्वार्टर आते हैं, 5,500 करोड़ रिलायंस ने सितंबर क्वार्टर में दिया है भारत सरकार को। 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मोटा मोटा 22,000 करोड़ रिलायंस, सिर्फ रिलायंस भारत सरकार को टैक्स पे कर रहा है, ठीक है। और ऐसे ही अडानी है, और इनके बिना भाई गुजारे नहीं है। धरती का कोई भी मुल्क हो गया, उसको कॉर्पोरेट हाउसेज ही चलाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास पूरा वो हब है, सारा जो चीज मैनेज हो सकती है वो उनके पास है। आपको और मेरे को कोई 1,000 करोड़ रुपया दे देगा ना, तो आपकी 2-3 साल तो सोचने में निकल जाएंगे, करना क्या। और किसी ने अनाड़ीपने में कुछ कर दिया तो वैसे बैठा बैठ जाना है। तो ये बोल देते हैं ना सरकार इनको सब्सिडी दे रही है, कंपनियों को दे रही है, भाई इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, भाई इनके पास दम है। ये प्रॉफिट, ये इतने सालों से जिंदा है कंपनियां, इतने सालों से कंपनियां जिंदा है, अपने आप को प्रॉफिट भी दे रही हैं, लोगों को भी हायर कर रही हैं, टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड कर रही हैं।
तो देखो अपने देश के बिजनेसमैनों का सम्मान भी होना चाहिए, ठीक है, बहुत कंट्रीब्यूशन करते हैं। मुकेश अंबानी को आपको लग रहा है मैं और आप इस टाइम बैठे हो तो वो क्या सो रहा होगा, कुछ कर रहा होगा ना, उसकी पूरी टीम कहीं ना कहीं वर्किंग होगी। तो थोड़ा पॉजिटिव रहो यार, कोई ज्यादा दिल छोटा मत करो अपना, मस्त रहो, विश्वास रखो सरकार में। 3 बार का प्रधानमंत्री, 2 बार का, 3 बार का मुख्यमंत्री, 2 बार का प्रधानमंत्री है मोदी, इसको हल्के में मत लो, इसके पास विजन है। और फिर देख लेना आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन है या फिर क्या होगा क्या नहीं होगा देश का। सम्राट भाई, आपने जो भी बात कही उसमें मेरा बहुत ज्यादा कोई ऐसा कोई एक्सट्रीम स्टैंड नहीं है। आपने जो भी बातें कही ठीक ठीक ही कही, एक्सेप्ट फ्रॉम द वन पार्ट वेयर यू सेड दैट दिस खालिस्तानी सरदार। तो आप ना एक ही सेंटेंस में खालिस्तानी भी नहीं बोल सकते और सरदार नहीं बोल सकते। सरदार का मतलब होता है लीडर, है ना, वो जो लीड करता है फॉर धर्म, है ना, जो धर्म के लिए लीड करता है। ये इनमें क्या है, ये इन्हें तो धर्म की समझ ही नहीं है, तो फिर ये लीड किसे करेंगे। खालिस्तानी मूवमेंट के को लीड करने वालों को सरदार हम कभी नहीं कह सकते। ये सिखलामिस्ट हैं, जैसा कि जो भी बहुत फेमस एंटी खालिस्तानी एक रूम चलाते हैं टोनी बल जी, उन्होंने ये टर्मिनोलॉजी कॉइन की है सिखलामिस्ट का। वो इन्हें आप ना सिख कहिए, ना इन्हें आप सरदार कहिए, ना ही ये सिख है ना ही ये सरदार है। बाकी आपकी बात ठीक है, बिल्कुल आपने जो ग्राउंड रियलिटीज बताई है, सिंगू बॉर्डर से आप पास रहते हैं, वो सब सही है। अभिषेक भाई आप माइक क्लिप कर रहे हैं बट पीटीआर भी है, सो अभिषेक इफ यू कुड जस्ट कीप इट शॉर्ट, देन इन दैट केस आई कैन गिव यू द माइक। तो आप अपनी बात अगर 1 मिनट में रख सके तो। No, you can move on the PTR order. Okay. In that case, Sundar is next in the PTR, and then Vatsal. Hello, hi everyone. तो अभी तो जो चल रहा है हम सब जानते हैं। मेरा एक फंडामेंटल चीज का एक सवाल है, सभी से है, और कुछ ऐसे सवाल है जो शायद आपसे पहले किसी ने पूछे होंगे या हो सकता है ना पूछे हो। क्या मुझे कोई यहाँ बता सकता है कि एक देश का डेफिनेशन क्या होता है? देश, ठीक है, लोग बोलते हैं कि ये हमारा देश है, तो देश मीन्स क्या? मतलब मैं एक जानना चाहता हूँ, मेरे तो पूरी अंडरस्टैंडिंग है कि देश क्या होता है। क्या मुझे और कोई बता सकता है थोड़ा डेफिनेशन की एक देश क्या होता है? रियलिटी में देश का मतलब क्या होता है? सामाजिक स्तर पे क्या होता है? नहीं, सुंदर भाई बात क्या है ना, सुंदर भाई बात क्या है ना, आपके बाद भी बहुत सारे लोग पीटीआर में है, तो मैं आपको थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा, जस्ट कीप इट शॉर्ट और फटाफट अपने ओपिनियन एक बार बता दीजिए, है ना। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब भी मतलब मेरा आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग की कोई सेंटर लेफ्ट राइट ऐसा कुछ नहीं, मैं एक हिंद की संतान कह लो आप, या इस जमीन पे पैदा हुआ एक बाशिंदा, ये सिंधु घाटी सभ्यता से चलता हुआ आ रहा 7,000 साल के बाद का एक मिट्टी का कण समझ लो, जो समझ कि जब हम बोलते हैं ना कि हमारा देश और ये एंटी नेशनल है सामने वाला, तो हम ना उसको निकाल देते हैं, राइट। हम क्या करते हैं, अगर कल को हम नागा लोगों को बोलेंगे कि नागा एंटी नेशनल है, तो वो क्या हो जाता है ना कि 140 करोड़ में से 3 करोड़ निकल गए, राइट। कल को हम बोलते हैं ना कि तमिल एलटीटी वाले हैं, तो 8 ने क्या कर दिया, 140 करोड़ में से ना 7 करोड़ निकाल दिए। तो हमारी जो फैमिली होती है ना, फैमिली में भी लोगों के अलग अलग ये होते हैं, वो होते हैं, लेकिन अचानक से किसी को एंटी नेशनल बोल देना, या किसी को नागा बोल देना, किसी को टेररिस्ट बोल देना, किसी को घाटी बोल देना, किसी को एलटीटी बोल देना, ये गलत बात है, क्योंकि हम फैमिली में है, फैमिली में भी हमारी ये फैमिली है 40 करोड़ की, जिसमें खान पान अलग है, रहन सहन अलग है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे इतने मल्टीपल लैंग्वेजेस, रिलीजन 70 साल से टिक रहे हैं, कोई देश नहीं टिका। पाकिस्तान टूट गया, यूगोस्लाविया टूट गया, यूएसएसआर टूट गया, सिर्फ इंडिया ही बचा है। इंडिया अकेला ऐसा देश है जिसमें 30 मेजर लैंग्वेजेस, 7 मेजर रिलीजन, 5 डिफरेंट तरह की रेसेस रहती है, और न जाने कितने एथनिक ग्रुप, ठीक है। और वो आज भी थ्राइविंग है। वो किसकी वजह से है? वो इसकी वजह से कि ये जो हम 140 करोड़ लोग हैं, हम लोगों ने थोड़ा टॉलरेंस दिखाया,
कभी इसकी मानी, कभी उसकी मानी, कभी इसको छोड़ दी, कभी उस थोड़ी छूट ली, राइट? थोड़ा एक दूसरे को ना जगह दिया एक दूसरे ने मिलकर, इसलिए अभी तक हम जिंदा है, हमारा देश जिंदा है। यहाँ पे अगर आप हर एक बार इसको 3 करोड़ लोग को निकाल दिया, वो साला उड़िया है 5 करोड़ निकाल दो, वो उड़िया एंटी नेशनल है तो 135 करोड़ हो गए, फिर उसमें से नागा भी निकल गए, तमिल भी निकल गए, तो ऐसा बचेगा क्या? तो जब हम डिस्कशन करते हैं ना, हम जैसा बोल देते हैं डायरेक्टली, जैसे भी ये कह रहे थे कि सरदार को बोल दिया या इसको बोल दिया या इससे क्या होता है ना कि एक आपका फैमिली के अंदर एक टूटने जैसे, ठीक है, आपके मन मुटाव है। सुंदर, एक मिनट भाई, प्लीज आप ना टॉपिक पे रहिए। यहाँ पे स्पीकर्स पैनल में बहुत सारे लोग अपने अपने ओपिनियंस देकर चले जाते हैं, है ना? तो आप ना, क्योंकि कुछ बहुत लोग आपके बाद ना पीटीआर में वेट भी कर रहे हैं, तो प्लीज लैंड योर पॉइंट इन नेक्स्ट 1 मिनट। ओके ओके, राइट। हाँ, तो मेरा अभी आई एम कमिंग टू पॉइंट। मेरा पॉइंट ये है कि हम सब लोग सपना देखते हैं कि हमारा देश सुपर पावर हो, दुनिया में राज करे, खेती में आगे हो, आईटी में आगे हो, हर चीज में आगे हो। लेकिन मैं बता, ये जो मेरा ओपिनियन ये है कि ये बहुत मुश्किल रहने वाला है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया का प्रॉब्लम यही रहने वाला है इन फ्यूचर भी, कि एक तबका खुश है तो दूसरा दुखी है, जब वो दूसरा खुश हो जाता है तो तीसरा दुखी हो जाता है। तो अभी किसान आज खुश है तो आज बिजनेस दुखी है, जब बिजनेस खुश होता है तो किसान दुखी हो जाता है, जब आईटी खुश होता है तब कोई और मैन्युफैक्चरिंग दुखी हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग तो फार्मा दुखी होता है। तो ये जो होमोजीनियस कंट्री रहता है ना, मतलब हेट्रोजीनियस कंट्री जिसमें बहुत तरह के अलग अलग तबके होते हैं, चाइना आज आगे क्यों है? चाइना की 90% पॉपुलेशन एक ही है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो सब ड्रैगन को मानते हैं, सभी ड्रैगन को, ठीक है। हमारा हेट्रोजीनियस कंट्री है तो ये एडजस्टमेंट में चलने वाला, उसमें कोई दिल पे लेने वाली, दुखी होने वाली बात है नहीं, क्योंकि अब हमारा नसीब है कि हम ऐसे देश में पैदा हुए जो है ना डाइवर्स। अगर हम चाइना में होते तो हम आज, चाइना में तो बुलेट ट्रेन चल रही है 400 किलोमीटर, तो रोज पूर्वांचल एक्सप्रेस जैसे रोज उद्घाटन होता है चाइना में, ठीक है। तो ये टाइम लगने वाला है, तो हमको दूसरों से कंपेयर करके कि जर्मनी क्यों आगे चला, जर्मनी क्यों आगे, क्योंकि जर्मनी में 98% लोग जर्मन राइट। चाइना में क्या है, 95% लोग मैंड्रिन बोलते हैं, कौन सा उनका हैंग चाइनीज है। जापान में क्या है, अभी जहाँ डाइवर्सिटी है वहां पे ये खींचता, डाइवर्सिटी वाले देशों का प्रॉब्लम ये है कि 200 साल तो यही चलता है, शुरुआत के अभी सिंगापुर एक अकेला दुनिया में देश है जो डाइवर्सिटी होते हुए तरक्की किया है, उसमें भी उनको क्या क्या नहीं करना पड़ा, 10-50 सरकारें बदल गई उनकी। तो हमको पेशेंस क्यों रखना, मुझे पता है हर तबके का पेशेंस अलग है, पेशेंस इसलिए रखना पड़ेगा कि हम हेट्रोजीनियस लोग। सुंदर सॉरी टू इंटरप्ट, सुंदर बहुत नहीं, देखो एक बार पीटीआर कर लेता, आपको दोबारा मैं बारी दे दूंगा। हाँ नहीं ठीक है, मैं बहुत अच्छी बात है। हाँ, आप अपनी बहुत अच्छी बात रख रहे हो, बट एक बार पॉइंट हो चुका है। मैं इस पे प्रतिक्रिया सुनता हूं। ओके, मेरे को बैक चैनल आ रहा है, मतलब रूम का एक बार दोबारा से रीसेट कर दो कि क्या मतलब है। तो बात ये है कि चलो फार्मर्स की तो जीत हुई है, बट जो खालिस्तानी प्रोपेगेंडा ये खालिस्तानी चला रहे थे ना बाहर बैठ के, कनाडा में बैठ के, और जो फार्मर्स को पोर्ट्रे करना चाह रहे थे, फार्मर्स आ रहे खालिस्तानी, और एलिमेंट तो आए थे खालिस्तान, जो 26 जनवरी में हुआ खालिस्तानी एलिमेंट हुआ, बट वो इन दी एंड हिंदू सिख में एक रिफ्ट क्रिएट करना चाह रहे थे और एक लड़ाई हो जाए, और उनकी सोच ऐसी थी कि दोबारा से मतलब दंगे हो जाए। तो अब उनका क्या सीन हो गया, ये तो चलो फार्मर की जीत होगी, ठीक है, राइट विंगर जो सपोर्ट करते थे फार्म लॉस को, चलो उनको तो दुखा, बट जो सबसे बड़ी हार हुई इन खालिस्तानियों की हुई है, क्योंकि ये बैठ के रो रहे हैं कि 1.5 साल इनको मिले, 1.5 साल में ये लड़ाई नहीं करवा पाए, अपनी सारी फंडिंग लगा दी इन्होंने, अपना सारी कोशिशें लगा दी, अपने सारे सब कुछ रिसोर्सेज लगा दिए, पर ये अपना प्रोपेगेंडा पूरा सेट नहीं कर पाए। तो ये रूम का वो था, टाइटल का मतलब था। बाकी हम पीटीआर में आगे चलते हैं। पीटीआर में वत्सल आप प्लीज अपनी बात रखिए। भाई लोग सबको राम राम। एंड मैं किसी को बिल्कुल भी हेट नहीं दूंगा, मतलब जो सरकार का डिसीजन है भाई, ऑफ कोर्स ब्यूरोक्रेट, ऐसा तो है नहीं कि सरकार में एक आदमी है जो अंधा गूंगा बन के बैठा हुआ है। लाइक आप मोदी बोल लो, कोई बोल लो, आप लोग अमित शाह मोदी को बड़ी गालियां देते हैं, सो ऑफ कोर्स उनके पीछे बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, एंड एडवाइजरीज होते हैं, उनके बोर्ड्स होते हैं, अंडर सेक्रेटरीज होते हैं। अब सो हम एकदम सिस्टम के प्रति एकदम अंधा नहीं हो सकते कि एकदम, मतलब दिस इज टू ऑल माय फार्मर ब्रदर्स की सिस्टम के प्रति एकदम अंधा नहीं हो सकते कि यार कि सिस्टम हमारे खिलाफ ही खड़ा है, कि
या तो फिर ऐसा है। एंड दूसरी चीज की मैं ठीक मतलब आई एम हैविंग अ वेरी न्यूट्रल फीलिंग अबाउट दिस, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि मुझे बीजेपी का ये एक्शन बड़ा अप्रिशिएबल लगा, और दूसरी जो मेरी फैट कंप्लेंट थी कि इनका कम्युनिकेशन ग्राउंड्स पर बड़ा वीक था। फिर इनका ग्राउंड पे कम्युनिकेशन वीक होता है जब कोई इनका पूरा पूरा कोई एजेंडा, इनका पूरा पूरा कोई ऑपरेशन जब कोई और हाईजेक कर लेता है, देन दे रैंट अबाउट इट। फिर ये सोशल मीडिया पर आ जाते हैं, बोलते हैं यार ये तो इस्लामिक रेडिकल इस्लामिक एलिमेंट ने हाईजैक कर लिया, या तो फिर खालिस्तानी एलिमेंट ने हाईजैक कर लिया, क्योंकि भाई उनका क्राउड पर कंट्रोल है ना, उनका यूथ पर कंट्रोल है। ये जो जितने भी इन्फ्लुएंजा बने घूमते हैं इंस्टाग्राम पर, ये जो स्नैपचैट पर, ऑल दीज बिकिनी शूटर्स, सब पर मतलब एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस है वोकिज्म पर। सो जब आपके यूथ को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, जो ड्राइविंग फोर्स है कंट्री की, जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो कोई आपकी बात क्यों सुनेगा? ये तो होना ही था, लाइक ये तो जल्दी हो गया। मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि गुरुपुरब के दिन हुआ था कि चलो लोग भी अपने घर वापस गए। दूसरी चीज, जो लोगों की मौतें हुई भाई, देयर इज अ वेरी पॉपुलर डॉक्ट्राइन ऑफ दिस, जब भी कोई इतना बड़ा मासिव मूवमेंट होता है ना, इट्स अकाउंटेबिलिटी इज टेकन अपॉन डेथ। मैं नहीं कह रहा कि जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो चाहते थे कि उनके बूढ़े मर जाएं, या तो फिर बच्चे मर जाएं, या तो फिर जवान मर जाएं, पर जितनी इनकी क्लर्जी होती है कि मतलब जितनों को पता है, जितने इनके बुद्धिजीव होते हैं, उन्हें पता है कि लॉस ऑफ लाइफ इज द बिगेस्ट लॉस टू अ डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी पे उसका एक जीवित व्यक्ति उसकी सबसे बड़ी अमानत होता है। हर एक व्यक्ति की एक अपनी कीमत होती है, उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया जाता है, उसके ऊपर टैक्स का काफी पैसा लगाया जाता है, उसे कितनी वैक्सीनेशन लगी होती है, कितने कितने क्विंटल उसने सांसें ली होती हैं आपके देश में, कितनी कितनी सड़कें आगे बनेगी जिनका वो टैक्स देगा। ही इज अ फकिंग लिविंग गोल्ड माइन। हर एक वैल्यूएबल आदमी, ऑफ कोर्स अगर 15 लाख से ऊपर सैलरी कमाएगा तो 30% कर देगा, 10 लाख के आसपास कमाएगा 20% कर देगा। तो जब ऐसे लोगों की मौत होनी शुरू होती है ना, तो ब्लेम जाता है अथॉरिटी के ऊपर। पीपल आर डाइंग एंड ऑफ कोर्स। और ऐसी जब मूवमेंट्स होती है ना, तो आप देखोगे बड़ी अनऑर्गेनाइज तरीके से होती हैं। आई वाज ऑब्जर्विंग दिस एंड आई वाज एस्टोनिश्ड टू सी, ये बड़ी ऑर्गेनाइज थी। डॉक्टर्स, फैसिलिटीज, एंड मतलब इट्स अ गुड थिंग कि डॉक्टर्स थे, फैसिलिटीज थी, सबके लिए सब कुछ था, बट स्टिल पीपल वर डाइंग। सो दिस वाज बिट लाइक आई वाज गेटिंग बिट skeptical about it, जैसे कहते हैं कि like people were manufacturing casualties. Although I don't have any proof of it, so I cannot be concrete upon this. But I'm happy कि यार चलो एक जो समाज का बहुत बड़ा तबका है, और जो इंडिया की एक बहुत बड़ी रॉ मटेरियल निकालने वाली जो प्रोफेशन है, that is not insecure anymore. एंड एक जगह मुझे खुशी भी है कि ये जो खालिस्तानियों का डिस्ट्रक्टिव जो वो था ना ट्रेड, कि बेसिकली खालिस्तानी सर व्हाट, अगर मैं खालिस्तानी 10 बार ना चल रहा हूँ, जो सेपरेटिस्ट आइडिया जो है इनका कि दे वांट दिस पीस ऑफ लैंड टू बी अवे फ्रॉम द पेरेंट लैंड। तो भाई मैं एकदम शांत हूँ कि इससे पहले ये लोग कोई मनुष्य हंगामा करते, या तो फिर डेथ मैन्युफैक्चरिंग करते, या तो फिर ये हाईवे पर कलेश करते, कुछ करते, अल्फा बीटा कुछ भी करते, उससे पहले ही द गवर्नमेंट हैव टेकन अ स्टेप बैक कि भाई आई एम नॉट इवन हियर नाउ, यू आर फ्लेक्सिंग योर स्क्वाड्स, whom would you hurt? So I'm very much happy by it कि मतलब खालिस्तानियों का जो जितना भी ये मोडस ऑपरेंडी था, उससे पहले ही ब्रेकआउट हो गया। दिस आइडिया ऑफ सेपरेटिज्म, अभी मुझसे पहले एक जेंटलमैन बात कर रहे थे, वो खंड और राज्य खंड की बात कर रहे थे। जैसे कि हम पहला एग्जांपल देखते हैं कि ओके, I'll cut the big picture short। जैसे अशोकन एम्पायर में थे, जनपद थे, महाजनपद थे, फिर हम देखते हैं कि खंड महाखंड थे, फिर हम देखते हैं छोटे राज्य बड़े राज्य थे, फिर हम कहते हैं कि स्टेट एंड यूनियन ऑफ स्टेट था। सो हमें सारी बातें समझ आती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आती, बट वी डिड नॉट वांटेड टू गेट इन दैट काइंड ऑफ इंटरेक्शन एनीवेज, क्योंकि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, इट विल remain union of state and it is not going to be violated by any force of separatism ever till the idea of India breathes and it bleeds. So and ये जिस आइडिया की बात कर रहे थे, that regionalism is a threat to religionalism, ये बात हमें CBSE ने ही जबरदस्ती मुंह के अंदर घुसेड़ी है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि regionalism is a threat to nationalism, ऐसा नहीं होता है कि religionalism is a threat to nationalism, ऐसा भी नहीं होता है। If someone in Yugoslavia or in USSR was fighting to do US versus
US versus Russia hegemony. So that doesn't mean people of Indic civilization are going to behave in the same way or with the same psychology. So I'm very happy that the government rolled back. अब इनके पास एक communication का एक ground है. They have a fresh ground. They were able to. The air passed away. So अब बहुत ज़्यादा space है and they can discuss it. And now Khalistani elements, which were very disruptive elements in the same protest, they won't be able to manufacture any of the casualty. They will not be able to create any substance of separatism now. So that is how I'll keep my conversation short. Thank you, Akreep. Thank you, Desert. Thank you, Ayub. थैंक्स सर, बहुत बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपने पॉइंट रखे, बिल्कुल सही। मतलब लव आप स्किप हो गए थे, आप प्लीज अपनी बात रखिए। लव Can I also say something? हाँ बोलिए सर, बिल्कुल सर, आप तो जब मर्जी हम इंटरप्ट कर। नहीं, असल में एक्चुअली सो आई वाज लिसनिंग टू वत्सल आल्सो, आई डिसएग्री। जहाँ तक जो मेरी समझ है, चाहे मुझे मॉडरेटर बनाया हुआ है, आई थिंक इंडिया लॉस्ट एंड बेसिकली जटवाद वन। एंड आई थिंक बोथ लाइक वत्सल वाज सेइंग जटवाद और समथिंग, बेसिकली एक सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये एक बहुत रेयर कॉन्सेप्ट होता है। इट इज एक्चुअली यू सी रोमन कॉन्सेप्ट में था कि एक बेसिकली जनपद भी थे, वहाँ के एरिया थे। सॉरी टू इंटरप्ट, मैंने जटवाद के बारे में कुछ नहीं बोला। नहीं, मैंने आपके बारे में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ टाइटल है फार्मर्स वन खालिस्तानी लॉस्ट। मैं कह रहा हूँ मेरी इंटरप्रिटेशन है इंडिया लॉस्ट एंड जटवाद वन, मैं ये कह रहा हूँ। तो एक बेसिकली सिटीजनशिप का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि बेसिकली माय लॉयल्टी लाइज मोर विद माय फेलो सिटीजन देन विद माय क्लैन। ये मतलब होता है एक सिटीजन का, जो असली में मतलब है कि सीधा सीधा मतलब है कि हम प्रवासी अगर ये हैं कि मेरा प्रवासी के प्रति मेरे क्या हक है, क्या मेरी लॉयल्टी है, उससे क्या मेरी बिरादरी है। अब ऐसे तो ये सारे ही नेशन बने हुए हैं, ये सारे ये अरब बने हुए हैं, ये पाकिस्तान बना हुआ है, ये तो भाई उनको नेशन कह दो, उनकी कैपिटल बना दो, उनका वो टिकट निकाल दो, तो वो कोई नेशन थोड़ा ना बन जाता है। तो ये तो अब, और ये जो खालिस्तानी भी ये क्या ये सारा इन्होंने कर दिया ना, वो वहां से भी जब ये इनको हटा देना चाहिए था 26 जनवरी को, वो वहां से वो पता नहीं कोई खा पंचायत इन्होंने कोई शुरू कर दी वहां पे यूपी के अंदर, वो उधर के वहां के जाटों ने ये काम शुरू कर दिया। ओ भाई ये क्या मजाक करो ना, ये टिकैत कोई किसान है। और आई डोंट नो, मेरी उम्र है 37 साल कि हमने देखा हुआ है 91 से पहले का क्या टाइम था। तो उस टाइम का जाके देख लो, मनमोहन सिंह ने अपने पेपर्स में क्या कहा हुआ है कि जब वो ये कर रहा था ना, इसको लिबरलाइज कर रहा था, तो उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि मतलब फार्म को किया जाए। उन्होंने कहा बाकी सारा कर देते हैं कि उसके अंदर कम लोग इन्वॉल्व है कि कोई बिजनेसमैन चीखेंगे। मनमोहन सिंह रोता रोता आ गया नरसिम्हा राव के पास कि मुझे इतनी गालियां पड़ रही हैं जैसे भी मोदी को गालियां पड़ रही। वो तो नरसिम्हा राव ने कहा कोई नहीं कि मैं आई एम द प्राइम मिनिस्टर, आई विल टेक द ब्लेम एंड यू डू इट। एंड नाउ जस्ट इमेजिन कि हमारी क्या जिंदगी होती थी भैया, दूरदर्शन वाली, कि वो पैसे हर जगह हमें लगे कि हम चोर हैं, कोई मासी कोई बाहर से आए तो कोई चीज मंगाओ, यहाँ पे कोई ढंग की कोई चीज नहीं मिलती, ऐसे हो रहा था। और यही हमारे किसानों के लिए होना था। ये बेसिकली है कि सारा जो हम उगाते हैं हमें चाहिए नहीं, वो उसको चूहे खा रहे हैं। जो बेसिकली जो फसल हमें नहीं चाहिए वो सारी पंजाब जैसी जरखेज धरती है वो सारी बंजर कर दी, वहां से कैंसर ट्रेन चली है। यही कुछ इकोनॉमिक सेंस में हो रहा था हमारे साथ, बट इसको हमने उल्टा करा दिया। लोगों को पता नहीं कि क्या चीज है। जैसे ये कह रहे हैं ना कि क्यों है, इनको कोई डिस्कशन नहीं कर सकता, बट हाँ कि हमें जी किसान है, हमारी होंद का मसला है जी, हमारी जात का मसला है जी, हमारे धर्म का मसला है जी, चलो चढ़ो जानवरों की तरह भीड़ में इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे करके ये सिरा ले आए हो तुम। तो ये जो हमारी कमिंग जनरेशन है उसके लिए बहुत ही है। एंड इट इज ऑल्सो पुट्स ए क्वेश्चन मार्क कि मतलब यहाँ पे भैया रूल ऑफ लॉ है कि है नहीं। कि एक कंसेंशुअल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि देखो एक चीज होती है कि हाँ जो 5% या हरियाणा किसान के ये जो थे बने हुए बड़े बड़े किसान थे, इनको नुकसान हुआ। बट इकोनॉमिक्स में होती है कि फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। मतलब आप कोई भी मान लो, जैसे आप मान लो पार्किंग लॉट बना रहे हो अपने घर के बाहर, ठीक है, तो वो सड़क थोड़ी कम होगी कि नहीं होगी। तो आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो कोई ना कोई बंदा होता है जिसका उससे नुकसान होता है। आप जिंदगी के अंदर कोई डिसीजन नहीं ले सकते, दूसरे की बात छोड़ो, जब आप एक भीड़ की बात कर रहे हो अपनी लाइफ में नहीं ले सकते कि एक डिसीजन ऐसा लो जिसके सारे पॉजिटिव हो उसका कोई नेगेटिव ना हो एक सर्टेन फ्रैक्शन के लिए। तो कंसेंशुअल गवर्नमेंट का मतलब ही यही होता है कि भाई जो सारों ने वोट किया उस हिसाब से डिसीजन आएगा। किसी को प्रॉब्लम है तो वो उसको जाके चेंज कर दो। ये तो भाई 1000 आदमी कोई मतलब अनपढ़ गवार वो क्या कहते हैं नाकारा कोई भी अपनी रोड इकट्ठी करते बस हो गया काम। ऐसे तो कोई मैं ले आता हूँ कोई जो मुझे पसंद नहीं, 1000 बंदा सड़क कट। ये जो पॉलिटिकल लीडर हैं
इनकी सभा होती है 50-50 हजार बंदे होता है उनका। अब तो किसी को कुछ रोकना है तो 1000 बंदे बदमाश लाके रोक दो दिल्ली की सड़कें और हो गया काम। ये भाई सरकार है, कोई रूल ऑफ लॉ है, ये कोई नेशन है, ये सारा क्या है? ना सिटीजनशिप है, ना रूल ऑफ लॉ है, ना सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई आप दूसरे के हक पे नहीं मार सकते, ये दूसरे का हक मार के बैठे हुए हैं कि यार ये मैं बताऊं, ये इतने गंदे और मैं मेरे मुंह से गाली निकलना चाहती है। इनको खुद देखो, इनका क्या ये क्या धर्म से लेना देना। लोग तो सारे कह रहे इन्होंने निहंगों ने काटा। चलो ये जो शुरू हुआ, ये सबसे पहले शुरू हुआ अमृतसर, ये जाके अपना पंजाब के अंदर, और इन बदमाशों ने ट्रेनें रोकी वहां पे जाके, अड़तियों के ये जो आंदोलन था। इसके बाद इन्होंने देखा अरे ट्रेनें रोकने से तो हमारा नुकसान होता है, तो हम पंजाब में नहीं करेंगे, हम दिल्ली का रोक देते हैं कि दिल्ली की फैक्ट्रियों वालों का नुकसान हो जाए। भैया इनमें क्या सिटीजनशिप है? जो बंदा ऐसा सोचता है कि मैं प्रदर्शन करूं तो प्रदर्शन ऐसी जगह करूं कि मेरा नुकसान ना हो, बाकी दिल्ली मर जाए, दिल्ली के मतलब सारी इंडस्ट्री खत्म हो जाए, मैं ऐसा प्रदर्शन करूं। इन जानवरों में को क्या पता है कि क्या नेशन होता है, क्या सिटीजन होता है? वो तो कोई भी डंगर भी बच्चे पैदा कर देते हैं, उनको क्या वो कोई इंसान थोड़ा हुए कि उनको कोई फहम ही नहीं कि सिटीजनशिप क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या समाज में कैसे जीना आता है, दूसरे आदमी के हक होते हैं, तो पता नहीं भाई। और इनकी तुमने एक्सटॉर्शन से वो ये हम हार गए हैं, तो पता नहीं भाई कौन सी जीत है। और मैं आपको एक फाइनल एग्जांपल देता हूँ, ऐसा ही हुआ था जब 1989 में, जो एक तो ये जो कहते हैं ना, ये कोई जाहिलस्तानी की बुच्चड़ था, केपीएस गिल था, और इनको कुछ पता नहीं कोई जिंदगी में। 1989 में गिल तो आया 88 में डीजीपी बन के, 89 में सारा टेररिज्म खत्म हो गया था। उसके बाद ये आया पता नहीं ये जो वीपी सिंह और ये क्या नाम है उसका, ये चंद्रशेखर, इन्होंने बेसिकली आके कहा कि हम जी बात करेंगे मिलिटेंट से, हम रिजॉल्व करेंगे। उसका पता है क्या बात हुई? 1991 का 2 साल का पीरियड है जिसमें पहले ये वीपी सिंह था और चंद्रशेखर था। 5000 इनोसेंट सिविलियन मारे गए। मैं पुलिस और उसकी बात नहीं कर रहा, मिलिटेंटों की 5000, और पूरी 15 साल की मिलिटेंसी में मरे हैं 10,000। मतलब 15 साल में 10,000, और 2 साल में जब इन्होंने ऐसे हरकतें की वो 5,000 मर गए। क्योंकि ये जो टेररिस्ट होते हैं इनको तो लश्करी मिलती है कि हमने सरकार दुखा दी, सरकार हमसे बात करना चाहती है। उसके बाद वो पहले जो कह रहे थे मिलिटेंट के हम अपना आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, वो बाद में देख लो ये जो सिमरनजीत सिंह मान है और मनोज चाल है, ये चंद्रशेखर को कह रहे थे ओए तूने हमसे बात करनी है, तो बात से विरोधाभास पे होगी कि खालिस्तान के नक्शे के बॉर्डर कहां पे होंगे। तो एंड में तो बेसिकली जब वो आया, क्या कहते हैं अपना बेअंत सिंह आया और गिल आया, तो वो तो 91 मेरे ख्याल जनवरी में आया। वो तो 1 साल के अंदर सारा खत्म हो गया जब इन्होंने डिसाइड 92 में सॉरी कि जब हमें ये करना है। तो ये जो गवर्नमेंट होती है ना कि इसकी सुन लो उसकी सुन लो, इन बदमाशों से बात कर लो, जब तक तुम रूल ऑफ लॉ नहीं करोगे भाई कोई इन्होंने तो कुछ नहीं हो सकता। अब ये देख लेना, ये कोई यहाँ पे बस कर जाएंगे, ये कोई और ले लेंगे, क्योंकि इनको पता है ये इलेक्टोरली तुम मोदी को भी हरा ही नहीं सकते। तुम इस बात की मेरे से कोई शर्त लगा ले कि साल के अंदर दोबारा दिल्ली ना रोकी हुई तो भाई ऐसे सरकार चलेगी क्या? कि ये बेसिकली उन्होंने पाकिस्तान बना दिया है कि वहां पे भी वो भीड़ लेके मौलवी आ जाते हैं कि ऐसा करो कि वैसा करो, फ्रांस का एम्बेसडर निकालो, नहीं तो हम सड़कें रोक देंगे। भैया अब रोज सड़कें रुकी जाएंगी। गलती शायद आपको म्यूट कर दिया किसी ने। नहीं मैंने बात होगी, मैंने अपने आप को म्यूट किया। Thank you so much, Puneet sir. Well, next in PTR we have Rishi Raj. Rishi, you around? हाँ सर, एक्चुअली मैं भी यही कहता हूँ कि इट इज अ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट टुडे दैट जो भी इन्होंने वापस लिया है कानून। क्योंकि आप ये देख लो सर, सिर्फ बड़ा पंजाबी लोग को कुछ भी लगे, लेकिन दीज टू आर नॉट ओनली स्टेट विच हैव फार्मर्स। मैं महाराष्ट्र से हूँ सर। महाराष्ट्र में आपको पता है लाइक यहाँ पे 3 पार्टियों की सरकार चल रही है। यहाँ पे सर एक प्रोटेस्ट नहीं हुआ। इनफैक्ट यहाँ के जब वो फर्स्ट कानून जब लेके आए थे तब इन्होंने यहाँ पे खुशियां मनाई थी, यहाँ के जो किसान संगठन है इन लोग। महाराज इन्होंने किसी भी सेंटर ऑन स्टेट को छोड़ा नहीं, और किसी भी मतलब ये जितनी है ना, जैसे आप देखो पंजाब में कोई हैवी प्रोटेस्ट नहीं किया। जो रैलियां रूलियां थी सब थी, मतलब पंजाब में डिस्ट्रप्शन नहीं हुआ। डिस्ट्रप्शन किया हरियाणा में, डिस्ट्रप्शन किया दिल्ली में, डिस्ट्रप्शन ये सारी करेंगे उन जगह पर वेयर इज द सेंटर रूल स्टेट। इनका जो ऑर्गेनाइज्ड जो शोर शराबा मचता है वो हमेशा वही मचेगा जहाँ सेंटर ने रूल किया हुआ। चाहे तमीज 2 रुपए की ना हो, इन्हें चाहे समझना है कि हमारे साथ गलत कौन कर रहा है। एब्सोल्युटली राइट, बट मैं ये कह रहा था ना, ये खत्म हो गया था 26 जनवरी को बिकॉज देयर वाज सच एन एंगर अगेंस्ट देम। ये खाप पंचायत क्यों बुला ली भाई टिकैतों ने?
ये जो सारे खालिस्तानियों को देके गाली दे फिर रही वो है, ये मैं बदतमीज ये नहीं कह बंदा रहा। है, वो यूपी पुलिस की नौकरी करता होता था, पहले वो खेती करता था, उसके बाद यूपी पुलिस की नौकरी करी और देखा वो कैसे पुलिस के बारे में गलत बोल रहा था। ये तो वही नहीं, बात मैं होगी। ये तो मैं सारी बात कह रहा हूँ भाई, हजारों बंदे वहां पे इकट्ठे हो गए, तो बात तो ये है ना कि ट्राइबलिज्म गलत है। एक सिविलाइज सोसाइटी में, डेमोक्रेसी में तुम्हारी लॉयल्टी है स्टेट के खिलाफ। ये नहीं कि मेरा भाई भतीजावाद, ये ट्राइबल सोच, तो वो खालिस्तानी की सोच हो या ये जटवादी सोच हो या ये यूपी के जिन्होंने इकट्ठा किए। मैं तो कहता हूँ सबसे ज्यादा अगर लानत पड़नी चाहिए तो ये यूपी के जो वेस्टर्न यूपी के जाट है उन पे पड़नी चाहिए, क्योंकि ये तो सारा खत्म हो गया था 26 जनवरी को। ये नाच तो इन्होंने मरवाया है। हेलो सर कुछ नहीं है, मेरा जिन्ना सर्कल है चंडीगढ़ से, मतलब कुछ लोग हैं जो बड़े ही हेविली इमोशन की वजह से दिल्ली बढ़ रहे थे। जो ये बाकी सारे फुकरे हैं ना, आप मानोगे नहीं, ये गेड़ी की तरह निकलते हैं, ठीक है, शाम को रोड पे लेकर स्नैपे वगैरह खोल के स्नैपे बनाते हैं, 1-1.5 दिन में वापस आ जाते हैं। ये सारी मतलब हाथी के दिखाने वाले दांत हैं सारे, जो इन्होंने गाड़ियां वगैरह लगाई हुई हैं, ये सब फुकरियां देंगी तो उसके बाद ये आती है। इन बदमाशों ने 303 वाली सरकार के घुटने तोड़वा दिए और इन्होंने यही सोचा है। दिस इज हाउ दे हैव इंटरप्रेटेड एज वेल। अब ये रोज काम होगा। At the end, what matter was actually इसमें मेरा इसमें ना मोदी के साथ एक और एक बंदा जिसकी सर हालांकि ऋषि राज, आई एम वेरी सॉरी, आप मेरे को 1 सेकंड दो। अरे यार, पुनीत जी, मैं ना ठीक है, पुनीत जी, मैं ना बिल्कुल भी गालियां नहीं देना चाहता किसी बंदे को, पर ये सारी बदतमीजी जो फैलाई हुई है ना, ये सारा जो रायता फैला हुआ है कि लोग ऐसे अपना ट्राइबलिज्म, नेचर ऑफ ट्राइबलिज्म लेकर इकट्ठे हो जाते हैं, खड़ जाते हैं कि यार हम ऐसा समूह है, हम ऐसे हैं। तो ये सारा रायता केजरीवाल का फैला हुआ है, जो इसने शाहीन गार्डन में जो बदतमीजियां करवाई थी, उसके बाद ही लोगों को ऐसे इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिली। वो उसने वेस्ट कॉरिडोर रोक दिया दिल्ली का, यहाँ लोगों ने बाहर रोक दिया। मतलब यार दिल्ली का जिसका केजरीवाल को कोई किसने वोट दिया? वो पहले शाहीन बाग वाला था, उसमें तो 2-3% सिख हैं। कितने परसेंट सिख हैं? या मैक्सिमम 5% होंगे जो दिल्ली में है। ये को किसी को भाई ना शत्रुबोध है ना कोई देशभक्ति है, कोई इनको समझ नहीं। फ्री बिजली पानी का सबसे ज्यादा उसने करवा दिया। भाई मेरी फैमिली ने वोट दिया, मैं और किसको क्या कहूँ? केजरीवाल को वोट दिया तो भाई किसी को समझ। मैं ये बता रहा हूँ ना, ये एक सिटीजनशिप, ये एक बहुत आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट होता है। नहीं तो इंसान हमेशा अपने कबीले से सोचता है। हम भी सोचते हैं कि मतलब ये हमारा कबीला। एक बहुत एनलाइटेंड कॉन्सेप्ट होता है सिटीजनशिप की मेरी लॉयल्टी मेरे फेलो सिटीजन की तरफ है। कि मान लो मैं अमेरिका में हूँ तो अमेरिकन की तरफ है, चाहे वो काला गोरा हो, चाहे मतलब वो कि मतलब वो कोई पंजाबी ना हो, मैं उसकी साइड हूँ। मतलब ये नहीं है कि हाँ मतलब अपने त्योहार व्योहार मनाओ जो मनाओ, कि मतलब तुम एक उसमें भी रहते हो। बट यहाँ पे तो कोई है ही नहीं कि देश मरता मर के। तो कहते हैं कि हम जाट बन के बड़ी चोच मार सकते हैं तो जाट बन जाते हैं, कोई सिख बन के बड़ी चोच मार सकते हैं तो सिख बन जाते हैं, कोई किसान बन के। तो भाई आइडिया यही है कि जितनी बड़ी भीड़ इकट्ठी कर लो उतनी बड़ी हम चोच मार सकते हैं। कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही नहीं। हेलो ऋषि यू कंटिन्यू, ऋषि आप कंटिन्यू करिए। हाँ, तो मैं तो वही बोल रहा हूँ कि मैं महाराष्ट्र से हूँ। यहाँ पे प्रोटेस्ट इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ के लोगों को पता था, यहाँ के लोग लंबे समय से डिमांड भी कर रहे थे कि ये ऐसा टाइप का लॉ आए। हरियाणा के भी फार्मर्स का मैं सुना हूँ कि उन लोग भी कर रहे थे, क्योंकि सर ये फार्मिंग लोग सही थे, इनका कन्वीनियंस इन लोग समझा नहीं पाए और नेशनल सिक्योरिटी था। ये सबसे बड़ा बेकार रीजन मैं मानता हूँ। ऐसे खराब शब्द में को यूज करना नहीं है, क्योंकि अगर नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट था, ये था, तो ये अमित शाह जो बैठा है क्या कर रहा था? इसको आज तक कभी आपने एक्शन में देखा है? आज तक आर्टिकल 350 हटा, सीए लॉ लाया, सीए लॉ के बाद जो प्रोटेस्ट हुए इसी क्लब हाउस में सारे रोम होस्टेड हुआ था, उसमें कपिल मिश्रा आया था। उसने बताया, वो पूरा एक्टिविटी बताया। उन्होंने 15 दिसंबर से ट्रैकिंग चालू की थी ये सब क्या बोलते हैं दंगे करवाने की, और 22 जनवरी को दंगे चालू हुए। इस बीच वो बंदा कर क्या रहा था? उन लोग दिल्ली जैसे शहर में उन लोग दंगे नहीं रोक पा रहे सर, आपको हम लोग बहुत डूबे। ठीक है, दूसरी बात है कि फार्म प्रोटेस्ट में आप देख लीजिए, जब दिसंबर में जब वो बातचीत चालू हुई थी अमित शाह से, जब इन लोग मिलने गए थे, तब भी वो बंदे ने बोला कि ठीक है अगर गलत है तो हम लोग रोक देते। अरे भाई, यहाँ पे द मोदी गवर्नमेंट वाज फाइटिंग टूथ एंड नेल अगेंस्ट दिस फार्मर कि भाई ये फार्म लॉ सही है, सही है, सही है। और उनके ही एक मिनिस्टर अमित शाह ने बोला, उसके बाद कौन बोला? वो सत्यपाल मलिक जो था, जो त्रिपुरा या मणिपुर का जो गवर्नर बन के बैठा है, वो भी वही बोल रहे हैं कि भाई हम रोक देते हैं। तुम ये तो बताओ, आज तक इनफैक्ट सर अगर आप वो जो वेस्टर्न यूपी का जो लोकल न्यूज चैनल है वो आप फॉलो करोगे तो BKU के बहुत सारे लोगों ने छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे। बहुत सारे लोग छोड़ चुके हैं और बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं वहां पे।
वो न्यूज में नहीं आया, लेकिन वहाँ के जो लोकल न्यूज चैनल है उसमें उन लोग बता रहे हैं कि भाई हमको यही नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें गलत क्या है। कोई गलत बता दे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से तो हम लोग को ऐसे ही ले जा रहे हैं कि भाई चलो किसानों का आंदोलन, और किसान के लिए सब जाएंगे, सही बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं होगी, लेकिन कोई ये तो बता दे गलत क्या है इसमें, लेकिन वो भी कोई नहीं बता रहा है। और दूसरा, तुम जब अहम मौके पे जब लड़ाई जीत चुके हो उसके बाद अचानक तुम घुटने टेक दे रहे हो। अभी तक लखीमपुर खीरी के बाद लगभग सबको ये चीज समझ में आ गई थी कि भाई दीज पीपल आर नॉट फार्मर्स। इन लोग जिस हिसाब से अटैक किए, जो भी किए, लेकिन फिर भी तुम एंड में जाके घुटने टेक दिए कि भाई तुम यूपी इलेक्शन में इनको कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। हिमाचल में थोड़ा बहुत पड़ जाता, बाकी उत्तराखंड में भी मेरे को नहीं लगता है, पंजाब में ये है ही नहीं। फिर किस बात के लिए तुम घुटने टेक रहे हो अभी पास में आके? चलो ये उम्मीद रख सकते हैं कि कल अगर इन लोग उसको इसी फार्म लॉ को दूसरी तरह से ले आए, लेस परिवेश, लेकिन बहुत मतलब थूक के चाटने की बात हुई है सर, सही बताऊं। थैंक यू, बस इतना ही कहना है। और दूसरा जो एक सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट का जो इन लोग बोल रहे हैं, सिक्योरिटी का तो इन्होंने पहले ही इंतजाम किया ना भाई। वो 50 किलोमीटर जो सीमा बीएसएफ की जो बढ़ाई है, तो उसमें तो अभी तो ये ड्रोन वोन आएंगे तो 50 किलोमीटर तक थोड़ी ना बिना किसी को दिखे ट्रैवल कर पाएंगे, तो आराम से दिख ही जाएंगे किसी ना किसी को। तो इनको या तो सिक्योरिटी में नहीं विश्वास है, या राजस्थान का भी एक बंदे से सुना कि राजस्थान में भी ड्रोन आ रहे, तो उधर भी नहीं विश्वास है। तो ये सिक्योरिटी एजेंसी कर क्या रहे, कुछ मतलब सरकार कर क्या रही है, सिक्योरिटी एजेंसी तो अपना काम करेंगी, लेकिन आई एम डीपली डिसअपॉइंटेड बाय द होम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर से इतनी शिकायत अभी नहीं है, लेकिन होम मिनिस्टर से तो बहुत है। ठीक है, किसी को इस पे रिबटल देना ले सकता है, मैं तैयार हूँ। ऋषिराज जी, मैंने आपकी बात केयरफुली सुनी एंड आपकी बातों में मुझे पूर्ण रूप से सच्चाइयां ही दिख रही है, एंड आई एम हैप्पी कि आपने इतना अच्छा इंटरप्रेट किया। लेट्स कम टू द पॉइंट। देखिए, मैं व्हाट आई फील इज दैट कि आई थिंक शाह एज अ प्रेसिडेंट वाज अ वेरी नाइस पर्सन, बट ही कैन नॉट हैंडल द होम मिनिस्ट्री एंड ही इज इनकॉम्पिटेंट नाउ, एंड बीजेपी हैज गॉट bunch of incompetent leaders at the top who are not managing the things very well, and I think they are not giving the fair share to the leaders that actually deserve a chance. Allowed the 26th January scandal. Just a minute. If they wanted to repeal it, they would have repealed longer. यहाँ पे इन लोग रिपील नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पे इन्होंने कोई प्रेशर में आके रिपील किया है, ये आप मत सोचिए। क्योंकि अगर रिपील करना होता, वो फार्म मिनिस्टर जो वो पागल है, वो 11 मीटिंग बार आके बोल रहे हम समझाने की कोशिश करें, वो समझ नहीं रहे, हम समझा नहीं रहे। तो देखिए, बहुत सब चीजें बहुत पहले ये स्टेज पार हो चुका था। फर्स्ट सेकंड डिबेट में बोल रहा था ठीक है भाई हम वापस दे रहे, क्या हो जाता। हाँ, देखिए ऋषिराज जी, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, एंड इवन आई नो कि वो बहुत एंथुजियास्टिक थे। इवन बाहर के सेलिब्रिटीज के थ्रू भी बहुत प्रेशर आया, बट दे हैड मैनेज्ड इट थ्रू अ काउंटर नैरेटिव, एंड इवन आफ्टर द लाखीमपुर खेरी केस they were quite adamant with their bills and they stayed undeterred. But बात यह है कि अगर कोई ड्राइविंग रीजन क्या हो सकता है, इफ नेशनल सिक्योरिटी इज नॉट द रीजन फॉर, नॉट अ ड्राइविंग फोर्स फॉर रिपीलिंग द लॉस, दैट व्हाट एल्स कुड बी द रीजन? इलेक्शंस का अगर इतना ही करीब है, देन वी कैन से कि देयर हैज नॉट बीन अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द वोट शेयर एज पर द टाइम्स नाउ ऑन सी वोटर सर्वे. Okay, Tanmay. Okay, if you are saying the national security is an issue, you are saying it right? So if national security is an issue, भाई आपको क्या लगता है कि अभी ये नेशनल सिक्योरिटी, आपको पता है, वैसे से आपको बता दूं, जब ये फार्म लॉ का जो प्रोटेस्ट चालू हो रहा है तब उन्होंने साथ में एक लेबर लॉ, लेबर लॉ भी लाया था एक, वो लेबर लॉ को भी उन्होंने बोला कि वापस भेजो। वो लेबर लॉ भी बहुत ज्यादा ये था, उसमें आपको पता हो जब इंडस्ट्री डालने रहोगे तो लेबर बहुत सारे लॉस थे, उसको उन्होंने कंबाइन करके 3 या 4 लेबर लॉ में कंबाइन किया था। PLI स्कीम ला रहे उन लोग। कल कोई बोल देगा भाई हमारे यहाँ पे ये नहीं बननी चाहिए, बंदूक नहीं बनना चाहिए, इसको वापस भेजो, कुछ भी हो सकता है भाई। और तब भी तो या तुम लोग यही बोलो कि भाई नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। नेशनल सिक्योरिटी वी आर फेसिंग अ 2.5 month war, उसमें कोई डाउट मत अपना बॉस। यस ऋषिराज जी, व्हाट इज द मेन रीजन? आपको क्या लगता है कि क्या रीजन हो सकता है इन्होंने कि क्यों वापस लिया है? Tanmay, just a second. Tanmay, just a second. We have a new speaker. Since we are
Sundar, just a second. Since we are at the verge of closing our session, so I would like to, hear it from Chintan as well. Then एक छोटा सा session रख लेंगे ऋषि and तन्मय जो आप लोग का discussion है. Then we will wrap up the session. तो चिंतन का सुन लेते हैं guys. फिर would come to you ऋषि and तन्मय. And even सुंदर जी 1 मिनट मिलेगा आपको. या चिंतन over to you. चिंतन थोड़ा ज़्यादा समय ना लेना. 1-2 मिनट में अपनी बातें complete कर देना. या नहीं, मुझे ज्यादा समय नहीं करना क्योंकि अभी मतलब मुझे नहीं पता है मतलब क्यों हुआ है, ठीक है, लेकिन एक ही रीजन हो सकता है, इंटरनल सिचुएशन ऑफ पंजाब स्टेट में भी, दैट्स इट. मुझे आप जो पूछ रहे हैं मुझे अगर मैं मतलब आप मैंने जस्ट अपना जो सोच रहा था वही बता दिया, बाकी मुझे कुछ नहीं कहना. Okay, Chintan. Yeah, Rishi, Tanmay, you guys have 1 minute. You can continue. Rishi Raj, I would like to know कि मतलब what is your perception about government's driving force responsible for repealing the. I personally think that they may have been shown a team कि पंजाब में भाई आप लोग आ सकते हैं और इसके लिए शायद कुछ हो अमरिंदर सिंह के थ्रू, बाकी छोड़ के मेरे को और else what people are saying this is master stroke, maybe after some discussion, after taking some I am just saying you this extra information that there is a very famous scientist, this room is going to close, otherwise I would have given him his name. He has gone to Iran to give Iran that how agriculture should be reformed. So when he was appointed in a committee by Supreme Court, he told that I am feeling like Arjun. मतलब मेरे को अर्जुन जैसा लग रहा है, जिसमें मेरे को पता है कि मेरे सामने मेरे भाई लोग गलत है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ. मेरे को उनके अगेंस्ट जाके ये करना है, इसलिए मैं पीछे हटना चाहता हूँ. महाराष्ट्र के एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, उनको भी ये बोल के निकाला. उन्होंने भी यही बोला कि भाई इनके सामने कौन मुंह लड़े, ये फार्म लॉ सही है, लेकिन what they are saying is wrong. And second thing, which if you feel that you have time, प्रिंट ने एक इंटरव्यू लिया था अमूल के वाइस डायरेक्टर या डायरेक्टर, ही इज ऑल्सो सिका, ही इज अ सरदार. तो उसका इंटरव्यू सुनिएगा और वो बताएगा कि किस तरह से प्राइवेटाइजेशन इन मिल्क इंडस्ट्री दैट इज अमूल हैज चेंज्ड द लाइफ ऑफ गुजरात मिल्क फार्मर, मिल्क प्रोड्यूसर्स, whereas how backward the Punjab has gone during that time. तो इस फार्म लॉ को पीछे लेने का रीजन है ना, ये अगर इन्होंने कल बराबर करके फार्म लॉ से कंटेस्ट करके ले आए, नहीं तो फिर मेरे को तो इलेक्शन छोड़ के वो कुछ नहीं लगता है. So, sir, how much do you blame BJP for repealing the laws? Do you think BJP should be blamed for such a move, or we should have some patience with them, or it should be? No, we should have patience with them. Listen, पेशेंस के लिए मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ. पेशेंस में आई एम विद यू दैट वी शुड हैव पेशेंस, बिकॉज कल अगर इन लोग दे ब्रॉट इन सम गुड साइंटिस्ट, सम गुड फार्म लीडर्स एंड दे ऑल गिव कंसेंट कि हाँ भैया फार्म लॉ सही है, बिकॉज इन टुडे स्पीच पीएम हैज आल्सो सेड दिस कि हम लोग वापस करके एक लाएंगे. Thank you so much. बट ये दिस टाइम व्हाट दे हैव डन, इसको हिंदी में ठोक के चाटना कहते हैं और कुछ नहीं कहते. ऋषि कंप्लीट हो गई है. अब संतोष लास्ट में क्या कहा आपने? सॉरी मैं आपका लास्ट लाइन वो आपने क्या कहा, क्या कर रहे थे वो? नहीं, अभी जो इन्होंने किया वो ठोक के साथ नहीं कहते हैं इनको. हाँ, कहना चाहता था एक लाइन बस कि एक आखिरी लाइन है मेरी, तो ये बात देखो ऐसा नहीं कि I was not around. No, hold on, Chintan. I was not around. Who was this? Rishi Raj, you said that इसे थूक के चाटना कहते हैं या what? Yeah. No. I get. I think you got to refrain from all those strong words because by ये democracy है. नहीं, Rishi Raj, you know what? Okay, the apology is taken, brother, but I need to address this because this is a democracy, right? And जब आपका एक बहुत ही overwhelming population अगर सड़क पे होता है 1.5 सालों से, ठीक है, तो ये सरकार की भी जिम्मेदारी होती है. कभी कभी स्टेप बैक्स हो जाते हैं, लेकिन है ना, कभी स्टेप बैक्स हो जाते हैं. आप इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स प्लीज बचिए ऐसा यूज करने से, ऋषि राज, ठीक है. मोर ओवर देखिए, एक ऑब्जर्वेशन देखा कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही इन्होंने फार्म लॉज रिपील किए, and with this they want there was the PM's gesture was that
the repeal of the farm laws was completely based on opinions from the Punjabi farmers and not from the farmers from across the country. And one thing was that maybe others will say it was intended to appease the farmers from Punjab. But one thing was that the intention behind such a gesture was to remind the non-Punjabi farmers that we have taken this decision keeping in mind the interest of the minority farmers as well. So I think that it's too lame to blame the Prime Minister for this, and I think it would be too irresponsible for us to call him incompetent, because I think there are much bigger reasons, and it may be possible that they somehow want to get rid of the protesters at this point of time when the state elections are nearing, and when their interference of farmer protests could lead to could set a very bad impact on the voters. So they want to they want to get a temporary rid of these protesters, and in the long term they would I think, and I strongly feel that they might bring bills one by one in a very discontinuous manner, not in a continuous manner like they have done with the 3 farm bills, but they will definitely pass these bills one by one. So I hope that happens. Thanks for the मैं जस्ट एक लाइन कहना चाहता कि मुझको भी टाइम देना बाद में, अगर इतना सब एक लाइन छोटी सी मैं यही कहना चाहता था एक्चुअली. Chintan, complete fast since we are running out of time. So बस 30 seconds की बात complete कर दें. मैं एक दो लाइन में करूंगा. यही कह रहा था, जो फार्म लोग आप देखो ना, मतलब थोड़ा हमको अपने पता है सबके लिए, मतलब सबको अच्छा नहीं लग रहा है. इन पे मतलब हम कूल रह के सोचे तो इतना ही कहूंगा कि जैसे आए थे वापिस हुए वैसे वापिस भी आ सकते हैं. ये गवर्नमेंट कहीं नहीं जाने वाली, यहीं पे रहने वाली है. हम ही लोग इनको वापिस लाएंगे तो वापिस आ जाएंगे. इसमें मतलब ज्यादा नहीं, मतलब अगर हम कुछ सोचने की ज्यादा जरूरत है ही नहीं. मतलब Santosh, are you around? Santosh Sharap hai? Yes, I am. I think let's listen to Rishi Raj. Then maybe I'll speak on this. Sure. Rishi Raj जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप बोल रहे थे कि आपको कुछ नहीं, मैं भी यही कह रहा था जो डेजर्ट भाई ने बोला कि there is a majority of population who was against this law. So look, the majority of population was very minuscule population was. There were large population who was supporting this law in different states. Okay, but they were sidelined. Their ambition was whatever their ambition, that was kept aside. Okay, and now comes like there were seriously Desert. I don't know from which state you are, but No, Rishi Raj, hold on, brother. I never said that there was a majority of population which was against this law. I actually said that there was overwhelming population which were on street protesting against this law. So even if this government decided to roll back the bills, it doesn't mean कि ये आप इतना strong statement देंगे कि थूक के चाटना वाली बात नहीं होती भाई. मैंने सिर्फ इतना कहा था. I never said that majority of the people were not against this law. I never said that. And yes, you assumed it right. I am not from Punjab state. Okay. Yeah, Rishi Raj, you can continue. No, I was talking about Maharashtra state actually. So here also we have got a serious farm issue where at some point of time our farmers used to be leading in when it comes to suicide, and the reason behind that was I'm just going off the topic. Recently, there is a movie coming that is Antim of Salman Khan. It's Marathi version also. There is a scene in it where a farmer goes to a mandi. Okay, he takes his whatever crop he has earned, और वहाँ पे उसको उसका जितना खर्चा हुआ वो फसल उगाने का, लेके आने का, वहाँ पे उतारने का, वो तो पूरा गया ही गया. वो माइनस में चले गया. इनफैक्ट उसको 2-3 हजार रुपए अपने पॉकेट से देने पड़े बेचने के. वहाँ पे ये हालत हुई है कई जगहों में, ये होती है मंडियों में. तो इसके अगेंस्ट वो फार्म लॉ थे जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होना जरूरी था, बिकॉज हियर ऑल्सो पीपल आर डाइंग. और इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो फार्मर्स ने प्रोटेस्ट नहीं कर पाए उसका रीजन ये नहीं था कि देयर वाज नो प्रोटेस्ट. अगर आप पहले जाओगे तो देयर यूज्ड टू बी अ लार्ज प्रोटेस्ट. टुडे आल्सो फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग, बट थिंग इज दे वर प्रीटी हैप्पी विद दिस लॉ, एंड नाउ व्हेन दे हैव just sideline means whatever desert you wish to say in your words, but when they have kept these farmer aspiration on the sideline, then there will be anger.
और पता नहीं like maybe a large part of farmers couldn't understand what the laws were. यहाँ पे उन लोग बच जाए, but when the farmers will understand it, definitely there will be answer. Okay, that's Okay. Yeah, actually, since it's late, so I'll just share my points. Okay. So according to me, this is not a win of farmer. Okay, I'm extremely sorry to say this. What happened today? I think we need to take few things here. First, the government of India is incapable of handling fifth generation warfare. Okay, Narendra Modi government failed in making people understand what is farmer law. Okay, this was the basic thing which they failed, and today it has to face the repercussion. Okay, this is my first point. Second point is so why Narendra Modi was elected with such a huge majority? The reason is because of his aggression, the way he takes care of government, the way he does things, especially the Gujarat model, etc., etc. Because of that, because of his unapologetic behavior, the way he take the stand, because of that, he is the Prime Minister of India. Unfortunately, that did not happen. Yes, there were farmers, okay. The key people who were, actually taking care of farmers, they actually spread some propaganda because of which a large portion of the farmer, they felt that, okay, our land is under threat, etc., etc., because of which there was farmer protest. I think Narendra Modi government haven't taken any action in making these farmer understand that, look, everything is fine. This farmer law is good. That never happened. Okay, I feel that personally Narendra Modi could have done better things, which unfortunately he didn't. Okay, when I go to Twitter, the things which really hurt me is there are people who are defending this, like they are saying this, भाई ये मास्टर स्ट्रोक था, आपको नहीं पता क्या क्या हुआ, ये नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट था, ये थ्रेट था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं इन सब लोगों को कुछ चीजें बोलना चाहता हूँ। असम का एक चीफ मिनिस्टर है, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ असम में, शायद आपको पता नहीं है। Recently, I think there was a news wherein I think 2,000 or some thousands of acres of land was illegally occupied by Bangladeshi and Rohingya Muslims in Assam. Okay, Hemant Biswa wanted to clear that land. When he went with bulldozer, tractor, etc., with police, there was violence. The Rohingya Muslims, they did stone pelting, everything, and they almost killed policemen. Okay. Hemant Biswa took the note of that. There were few NGOs. We know how this works, right? Like Rohingya is always backed by money NGOs. NGO went there and they lodged a case in court. Hemant Biswa unapologetically, he went to court. He said that, look, we will clear the land no matter what. I'll not give any compensation. If there is any Indian, if there is any Indian nationalist who is thrown from that place because of my action, of course I'll take care of him. But I'll not give a single penny to any Rohingya or Bangladeshi. Okay? Today, that entire land is vacated. There is no Rohingya, no Bangladeshi there. Okay? There was same propaganda, there was same fake news, same journalist, but he had the guts to take action. Okay? He arrested those journalists who were spreading the fake news. Same attack was done like on Narendra Modi, they attack, right? Islamophobic, etc., etc. Same attack was done on Hemant Biswa. But he was unapologetic. He was very clear in this vision, and now it is clear. Okay, and if you look at the election, it was because of Hemant Biswa he became chief minister again in Assam, not because of Narendra Modi. Okay, in every other part of India, the election, whether it's state election or central election, the election is fought on the basis of Narendra Modi's name. But in Uttar Pradesh and Assam, it's because of the chief minister like Hemant Biswa and Yogi Adityanath, the election is fought.
Second, we all know what happened in CAA protest, anti-CAA protest, but it was in Uttar Pradesh where they couldn't blackmail. Okay, the masjid were again used to stone pelt to blackmail the government. Okay, but the way Yogi Adityanath took the stand, the situation was under control. There was riot done, there was burning, all those things. The masjid has to pay the money. Okay, people were arrested. I think UPA Act was put on. Okay, my problem with Narendra Modi is whether it's anti-CAA protest, whether it's farmers' law. Look, there are real farmers who are protesting. I accept that. I think we should not hurt them. But whether it's real farmer or fake farmer, no one should be allowed to block the road and do protest. Narendra Modi failed to take the action. He waited that things will resolve normally, etc., etc. Okay, but that never happened. It's the failure of Narendra Modi government. Okay, and this is coming out. It's unfortunate, but this is coming out, and this will create a very serious problem. Okay, now institution, Rishiraj, please mute yourself. Yes, institution like PFI, okay, which has huge money, Zakat Foundation, there are many few radical institutions. They have crores of money. They will bring people, they'll hire people, they'll start doing propaganda, and the radicals, now they are thinking that they have a chance. Even after getting 303 seats, even if we are fighting against a very strong government, they think that they have a chance to get things done. This is an extremely wrong message which is being sent today. Okay, I completely disagree with Narendra Modi on this. He could have done more, and it's not that he is like Rahul Gandhi. He has lot of experience. Okay, he is here not because of Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas. It is because a community think that he is the man who represent us. Okay, जो 1000 साल में नहीं हुआ, ये बंदा करेगा हमारे लिए. Okay, वो विश्वास को आज थोड़ा आघात हुआ है. बट बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे. सर, यहाँ वोट का बात नहीं हो रहा है. यहाँ बात ये हो रहा है कि आपने ये गलत स्टेप लिया. और एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर आपके घर में आपके माँ बाप या भाई के साथ अगर आपका थोड़ा अनबन हो या कोई ऐसा पॉइंट हो जो आप एग्री नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि आप माँ बाप भाई को चेंज करते हैं. आप अपने बाप को चेंज नहीं कर सकते, है ना. तो वो चीज है. और जब हम कोई नरेंद्र मोदी का लाइक से फॉर एग्जांपल उनके कोई कोर सपोर्टर को जब आप ये बोलते हो तो बोलते हैं मतलब वो लेते मतलब तो वोट नहीं करेगा. वोट किसको करेगा? सर, यहाँ वोट की बात नहीं हो रही है. जहां पर जो पॉलिसीज है उसके बारे में बात हो रही है, वो हमें समझना चाहिए. तो मेरा ये व्यू है कि आज जो डिसीजन लिया था वो बहुत गलत था. ये कोई फार्मर की विन नहीं है. ये ब्लैकमेलिंग, जो ब्लैकमेल एक कम्युनिटी थी, एक तबका था जो ये सोचता था कि हम रोड को ब्लॉक करके ब्लैकमेल कर सकते हैं, आज उनकी जीत हुई है. और ये बहुत ही गलत मैसेज गया है. और इससे ये एक डिसीजन से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, मेरा ये अनुमान है. इसका इलेक्शन में कोई भी बीजेपी, मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी ने ये इलेक्शन के लिए किया है, पंजाब इलेक्शन के लिए किया है, बिल्कुल नहीं लगता. ठीक है, बट ये गलत मैसेज जा रहा है, मेरे को ये लगता है. थैंक यू संतोष सर. हेलो. या सुंदर, आपके पास बस 1 मिनट है. 1 मिनट से बिल्कुल ज्यादा नहीं. अब रूम क्लोज करने का टाइम आ गया. 1 मिनट है सर. मेरे 3 पॉइंट है यहाँ पे. पहला तो जो भी संतोष जी ने कहा कि 303 लोग हैं, इन्होंने दिया है, तो थोड़ा सा मुझे आपको थोड़ा सा आपका जो डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, उसको मैं थोड़ा सा उस पर एक लाइन ऐड करता हूँ. डेमोक्रेसी में है ना, गवर्नमेंट बनाई मेजॉरिटी से जाती है लेकिन चलाई रिपब्लिक से जाती है. राइट, कि ठीक है आपको 350 सीट मिल गया, आपने गवर्नमेंट बना ली, लेकिन गवर्नमेंट उसके बाद उस 303 सीट तक खत्म हो जाता है उसका वैल्यू. अगले दिन से शुरू होता है कि आपका रिपब्लिक मतलब वो तबका जिसने आपको शायद वोट ना दिया हो, या जो नंबर्स में कम है, जैसे अंडमान निकोबार का आदिवासी नंबर्स में कम है. इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां का जंगल उड़ा दो. राइट, तो
एक तो वो चीज है कि डेमोक्रेसी का मतलब मायने अलग अलग है, थोड़ी डेफिनेशन वास्ट है, जस्ट इट्स नॉट अबाउट। सेकंड थिंग, मैं फार्म लॉ के बारे में बोल रहा हूँ कि आपको शायद याद होगा मोदी जी ने जब पहली बार आए थे तो क्या कहा था, फंड द अनफंडेड, बैंक द अनबैंक, जनधन बनाया, मुद्रा योजना। एक हिडन उसके पीछे मैसेज था, टैक्स द अनटैक्स। तो ये जो फार्म लॉ था ना, ये वो टैक्स द अनटैक्स है ना, उसका वो एक पार्ट था। बिकॉज भारत पे किसान को छोड़ के हर कोई टैक्स देता है, तो किसानों को टैक्स नेट में लाना था, इनकम टैक्स नेट में लाना था। जीएसटी तो खैर जीरो है, तो इनकम टैक्स नेट में लाना था, और उसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था फार्म लॉज आयोग। तो कोई गलत नहीं है दुनिया में। सुंदर भाई आपने एक बार कर्नाकुलम का प्रोटेस्ट नहीं ऋषिराज, एक मिनट सुंदर, एक मिनट, लेट्स नॉट इंटरप्ट ईच अदर। सुंदर भाई को कहने दीजिए, फिर ऋषिराज आप कहिए, फिर मैं कहता हूँ। हाँ, तो वो किसानों पर टैक्स लगाना या खेती करने वालों पर टैक्स लगाना कोई बुरी बात नहीं है। दुनिया में मेरे ख्याल से मेजॉरिटी ऑफ देश किसानों पे इनकम टैक्स लगाते हैं, सिर्फ भारत ही ऐसा है, कुछ और देशों पे नहीं लगता है। तो वो उनको टैक्स तक पे ला रहे थे। बस मुझे लग रहा है उनका गलती ये हो गया ना कि उन्होंने ये सब करने से पहले किसानों को कोई प्रोटेक्शन नहीं दी, एक सोशल प्रोटेक्शन। जैसे अमेरिका में फूड स्टैम्प मिल जाता है, या हो सकता है यूके में कुछ तो $200 महीना मिल रहा है, या जो भी है। मतलब मे भी वो एक एरिया है जहाँ पे वो नहीं काम कर पाए कि हाँ भाई अगर आपको नुकसान भी होता है, एमएसपी के नीचे भी बेचते हैं, तो ये देखो भाई ₹1000 महीना आप दे रहे हैं। Sundar, एक minute. The edifice of your argument revolves around a lot of assumptions. First of all, the government never claimed that they are bringing out all these farm laws because they want to bring all these kisans under a tax bracket. Okay. Sir, यही तो है ना, yeah, that you have to understand. Government will not say it No, directly. even That is what. first of all. No, Yeah. hold on. Then you went on to quote a lot of examples from other countries like for $200 दे देते या $300 दे देते हैं। ये इंडिया की जीडीपी में फिलहाल पॉसिबल नहीं है। जो हमारा इकोनॉमी है, सपोर्ट नहीं कर पाएगा। I understand. We are a developing country. We cannot afford that. रजत भाई, किसान सम्मान निधि तो मिलता है ना भाई? नहीं, किसान सम्मान निधि मिलता है। सुंदर जी, आप एक काम कीजिए, आप 1-1.5 मिनट में अपना बात कंप्लीट कीजिए शॉर्ट में। हाँ ठीक है, मेरा लास्ट। ऑल्सो प्लीज क्या ना, फिर थोड़ी देर में हम रूम भी एंड करेंगे। हाँ, तो मेरा दूसरा पॉइंट ये है ना कि वो जो एरिया है ना कि भाई अगर लॉस में चला जाता है किसान कॉर्पोरेट फार्मिंग के बाद, या ये सब एमएसपी हटा देने के बाद, या जो भी है लिटिगेशन के बाद, तो उसको सर्वाइवल क्या होगा? तो वो एक एरिया है, वो थोड़ा सा वीक था इन लॉज में, ऐसा मुझे लगता है। और तीसरा मेरा ये केस है कि अभी अपने इन्होंने रिपील क्यों किया है। नेशनल सिक्योरिटी तो मैं इशू नहीं मानता हूँ इसमें। मैं इसमें इशू मानता हूँ कि बीजेपी जहां भी इलेक्शन लड़ती है तो वो 2-3 चीजों पे लड़ती है। एक तो नेशनलिज्म, दूसरा हिंदुइज्म, और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट, या एयरपोर्ट बनाया, रेल बनाई। और वो नहीं चाहती थी कि अगले साल के इलेक्शन में वो ये दिखाए कि हम राष्ट्रवादी है, और सामने वाला दिखाए कि ये एंटी किसान। ठीक है, तो वो एक मेजर कारण है कि उन्होंने इसको ले लिया। तो अब वो टॉपिक खत्म हो गया, मतलब नैरेटिव खत्म हो गया कि ये एंटी किसान। अब नैरेटिव चलेगा नेशनलिज्म, जो उनका पुराना है, या हिंदुइज्म, या जो भी है, रोड बनाया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया, एयरपोर्ट बनाया, जो भी है, रेल। तो दिस इज व्हाट माय थॉट्स। ठीक है, ओके, थैंक यू। मैं हो गया। मैं इस चीज में कुछ कहना चाहता हूँ। कोई कहना है एक दो? हाँ ऋषिराज, आप कह लीजिए, फिर मैं कह। सुंदर सर, आपने जो भी चीज बोली ना, दैट आर वेरी गुड। दैट ये वोट देते समय वोट बैंक होता है, उसके बाद रिपब्लिक हो जाता है। बट ड्यूरिंग व्हेन द दिस कर्नाकुरम प्लांट nuclear project was going on, nuclear plant project, चिदम्बरम also did the same thing. वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ऐसे ही प्रोटेस्ट था वहाँ के लोगों का। चिदम्बरम केम, उसने लाठी चार्ज करवाया, उनके ऊपर यूएपीए एक्ट लगवाया, जितने भी प्रोटेस्टर्स थे। नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट बाबा रामदेव को जानो, अभी वो क्या हो गया, लीव इट। बट ड्यूरिंग 2011-12 he was protesting before Anna Hazare or after Anna Hazare for this RTI था, लोकपाल बिल, आई थिंक। शायद इसीलिए कांग्रेस
नहीं, कांग्रेस उसके लिए नहीं आ रही सर, कांग्रेस आ रही है उसके उसके उसमें स्कैम बहुत ज्यादा हो रहे थे। हाँ, ये भी उसका रीजन है, ये भी पार्ट ऑफ स्कैम हो रहे थे इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन वो प्रोटेस्ट से जिस तरह से भगाया उसके लिए कोई नहीं बोल सकता कि कांग्रेस आ रही है। सब उसमें तैयार थे। उस समय बाबा रामदेव का ही मजाक उड़ा था कि देखो कैसे भाग गया, वो बुर्का पहन के भागा, ये पहन के भागा, वो पहन के भागा। तो ये कोई नहीं बोल सकता है कि भाई इनके ऊपर अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता तो इनकी ही तारीफ होती, कोई किसान की साथ नहीं जाता, क्योंकि आफ्टर 26/11 they had seen that what they were. After Lakhimpur also they had seen what they were. But this is clear sheer incompetence of Amit Shah. इसमें मोदी उतना जिम्मेदार नहीं है जितना वो है। He is responsible for internal security. I don't know what this guy is doing seriously, क्योंकि RS ज़्यादा टाइम तो चुनाव मोड में ही रहता है। हाँ, एक और एक चीज मैं बता दूं, अभी जो मणिपुर में आप लोगों को पता हो एक मेजर का टेररिस्ट ने अटैक किया था, तो ये बंदे ने 11-12 घंटे बाद ट्वीट किया है कि दिस इज मतलब कंप्लेन करते हुए कि बेकार अटैक था, करी निंदा करते वो सब। ये बंदा तब तक पूरे इलेक्शन मोड में था। तो ये एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि मोदी जी, आई एम ऑल्सो अगेंस्ट दैट वॉट एवर ही हैज डन, बट whenever topic is coming to internal security, take this man's name too. से मोदी के ऊपर नाम मत दो, मोदी इज डूइंग लॉट ऑफ गुड वर्क, ही इज अ प्राइम मिनिस्टर। हर एक चीज के ऊपर हाथ नहीं डालता है। PLI स्कीम लेके आ रहा है, अभी ये फ्लेक्स फ्यूल का प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं इन लोग, ये सारी चीजें वो उसमें भी उसका ही हाथ है, वो भी मोदी गवर्नमेंट ही कर रही है। लेकिन इस चीज के ऊपर दिस इज पर्टिकुलर टू अ मिनिस्ट्री एंड दैट मिनिस्ट्री इज एक्टिंग इनकॉम्पिटेंट। दैट्स इट। संतोष, यू कैन गो एंड थैंक यू चाहता था संतोष जी। जी चिंतन जी, आप मेरे बाद रिप्लाई दे सकते हैं। सर मेरा इससे पहले जो आई थिंक सुंदर जी आप मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात कर रहे थे, सर ये वो बात नहीं है, ठीक है। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट सत्ता में आई क्यों? क्योंकि जो करप्शन हो रहा था, जो गवर्नेंस के प्रॉब्लम हो रहे थे, और जैसे मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे अपना देश संभाल रहे थे, देश उससे नाखुश था, इसलिए उनको क्लियर कट मेजॉरिटी मिली, ओके, और वो खड़े उतरे, ठीक है। 2014 के बाद उन्होंने बहुत सारे ऐसे किए जो ऐतिहासिक है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हुआ सर कि जब आपने 2019 आया, ठीक है, 2019 के बाद आई थिंक जो तबका था वो तबका जिसको लगा था यार 2014 एक तुक्का है, ठीक है, 2019 में ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो बहुत ही बुरी तरह गलत साबित हुए, ठीक है। उसके बाद सर ये जो ब्लैकमेलिंग स्टार्टिंग हुई, ठीक है, ये आई थिंक गवर्नमेंट को ये थ्रेट सीरियसली लेना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं लिया। ये कोई मेजॉरिटी माइनॉरिटी का बात नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये कहा गया कि गवर्नमेंट, ये फार्मर लॉ इसलिए लिया गया है क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि इलेक्शन में ऐसा एक पॉइंट आए जहां पर नेशनलिज्म वर्सेस फार्मर्स हो। सर क्या फार्मर्स नेशनलिस्ट नहीं है? और कौन कौन ये राकेश टिकैत फार्मर को रिप्रेजेंट करता है क्या? सर वहां जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, वहां गरीब किसान बेचारा टेंट में सो रहा था, राकेश टिकैत AC में सो रहा है, ठीक है। जहां जहां इलेक्शन होता है साला वहां चले जाता है। तो ये आंदोलन तो नहीं हुआ सर, एक जोकर चाहिए था, उसको पकड़ा दिया। अब जैसे कांग्रेस को एक आदमी चाहिए, राहुल गांधी पकड़ाया, वो बीच बीच में सब करप्शन करते रहते। नाम सिर्फ कांग्रेस का ओनर कौन है? राहुल गांधी, खाते सब है, ऐसा सीन है, ठीक है। दूसरा सर ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जैसे आई थिंक ऋषिराज जी ने ये कहा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुआ था और चिदम्बरम ने भी यही किया, और इससे पहले बाबा रामदेव ने वो भी उनके साथ भी वही हुआ। सर ये सारे प्रोटेस्ट में किसी ने रोड ब्लॉक नहीं किया, ठीक है। आई थिंक वो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां पर ओशन में लोग खड़े होकर प्रोटेस्ट किए, वहां पर कोई कॉमन आदमी को ये नहीं हुआ। यहाँ पर सर रोड ब्लॉक किया गया। देयर वाज अ क्लियर इंडिकेशन दैट सम खालिस्तानी एलिमेंट इज इन्वॉल्व देयर, दे आर ट्राइंग टू हाईजैक। बहुत हाई इंटेंसिटी में वायलेंस किया गया, ठीक है, रियॉट्स हुए। CAA में तो आप जानते हैं सर, मैं तो वो एक टेररिस्ट एक्ट बताऊंगा सर, ये कभी नहीं हुआ, ठीक है। अगर मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं, मेरे प्रोटेस्ट में कोई आके
बॉम्ब डाल के चला जाए सर, वो भी प्रोटेस्ट नहीं रहा सर, वो नेशनल सिक्योरिटी इशू है। आपको प्रोटेस्ट करना है सर, आप एक प्लेस में जाइए, प्रोटेस्ट कीजिए, ठीक है। ये तरीका नहीं है कि आप रोड ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है, आप वहां लोगों को मार रहे हैं। सीए प्रोटेस्ट में बिरयानी के चक्कर में क्या क्या हुआ ये हमको पता है सर। ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है सर, ये ब्लैकमेलिंग है। और नरेंद्र मोदी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फुल्ली केपेबल है ये ब्लैकमेलिंग को डील करने के लिए, क्योंकि देश उनके साथ है सर। सीए वापस क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि देश उसके साथ था। उसके बाद इलेक्शन लड़ी, फिर जीती, ठीक है। जो हारे ये हरियाणा में थोड़ा, आई थिंक वेस्ट बंगाल में ये सब, वेस्ट बंगाल और दिल्ली में हारे। दिल्ली का पूरा इलेक्शन वो शाहीन बाग पे लड़ रहे हैं, ठीक है। अगर एक होम मिनिस्टर एक रोड क्लियर नहीं कर सकता तो लोग उसको वोट क्यों दे? इसलिए वो हारे सर। तो मैं इस बात से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं कि ये ऐसा चीज है सर। गवर्नमेंट को बहुत अच्छी तरह हैंडल करनी चाहिए थी, जो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं किया। ये ब्लैकमेलिंग है। आप स्टेट को ब्लैकमेल नहीं कर सकते सर, चाहे चिदम्बरम क्यों ना हो, आप उनको वायलेंस के थ्रू ब्लैकमेल नहीं कर सकते। चाहे मेरा प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी क्यों ना हो, आप वायलेंस यूज करके आप ब्लैकमेल स्टेट को चैलेंज नहीं कर सकते। अगर चैलेंज करेंगे तो आपको मार पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरेंडर्ड टुडे एंड इट विल क्रिएट अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। ये देश को समझना चाहिए। ये कोई वोटिंग की बात नहीं है कि 2024 में हम वोट नहीं देंगे, यहाँ वोट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ये कोई मास्टर स्ट्रोक मुझे नहीं लगा सर। तो इससे मैं इसे कोई डिफेंड नहीं करूंगा। हाँ, बिल्कुल इसके पीछे कोई लॉजिक है वो मुझे नहीं पता है, बट ये मेरा व्यू है और मुझे लगता है कि मैंने लॉजिकली आंसर दिया है। आई थिंक मेरे बाद चिंतन आपको कुछ कहना है सर, आप कहिए, फिर सबको एक एक मिनट मिलेगा, देन विल एंड द रूम। ठीक है, दो बातें कहेंगे। पहली बात आपने जो कही, लॉजिक नहीं पता है। लॉजिक जो भी हो, मजबूरी है, ठीक है। और आगे इसका दूसरी लाइन यही कहा, देश के लिए लाए थे वो कानून, सॉरी किसानों के लिए लाए थे वो कानून, जिसके लिए वो वापस ले गए। समझ जाए, इसी से पता चल जाता है कि जरूर कुछ ना कुछ है, लेकिन मजबूरी है जो कि कहीं ना कहीं चुप तो हो सकती है, वही हुआ होगा। Yeah, I guess Santosh sir, we must now end the room. I've been receiving messages from Greece sir as well. So Santosh sir, last 30 seconds, your final words, then would listen from Sundar, Rishi and Chintan. Sure. I'll go last. Let's hear Sundar, Rishiraj, Chintan and you. Then I'll speak. Then let's end the room. सुंदर जी, आपके पास 30 सेकंड से 1 मिनट है। आप प्लीज अपनी बात रखिए शॉर्ट में, और फिर हम कंक्लूजन दीजिए, फिर हम ये रूम एंड करते हैं। हाँ, मेरा तो अभी यही कहना है कि अभी अगर ये रूल लॉ ये तो दोबारा भी आएगा। चलो, एक जो अपना फार्मिंग बेल्ट है इंडिया का, वहां पे कुछ इम्पोर्टेंट इलेक्शंस है, ये है, तो अंडरस्टूड ये रोका है। तो मुझे लगता है कि जब आगे आए तो ये थोड़ा सा और फार्मर्स को सेफ्टी और एक पैकेज दे कि अगर कल को एमएसपी कम हो जाता है, वो टैक्स में आ जाते हैं, तो उनको एक छोटा सेफ्टी। आई अंडरस्टैंड हमारा बजट कम है, लेकिन उसमें से भी कुछ छोटा सा उनको एक, यहाँ भाई आपको एक फार्मर पेंशन 500 रुपए महीना, जैसे नहीं है अभी भी तो मिलता है कुछ लोगों को, विधवा पेंशन या फिजिकल हैंडीकैप समथिंग लाइक दैट। तो जो छोटे किसान है उनको 500 रुपए महीना सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है। तो वो छोटा मोटा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अगर वो वैसे लाओगे ना, थोड़ा वो इंक्लूसिव हो जाएगा, और ना ये सब एंटी सोशल एलिमेंट उसमें खड़े नहीं हो। तो बस मेरा इतना ही कहना है कि थोड़ा एक रीपैकेजिंग करके थोड़ा इंक्लूसिव टाइप लाओ, थोड़ा सा एक जो लैंडलेस फार्मर है, किसान है, उनके दृष्टिकोण से थोड़ा बिल लाओ, तो फिर वो हो जाएगा। That's it. थैंक यू सो मच सुंदर। ऋषि आप हैं? ऋषि 30 seconds में आप अपनी final words. So I just want to say this, that if Modi government is going to bring this bill back, कल अगर वो लेके आते हैं तो एक they should be prepared for internal unrest, क्योंकि जो सुंदर भाई बोल रहे हैं उससे भी कुछ नहीं होगा। उन लोगों को unrest create करना है। They are going to select a non valid topic है, उसका unrest create करेंगे। दूसरी बात है, give farmers open market। उनको कोई पेंशन नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, उनको उनके जो भी वो उगाते हो उसका बराबर भाव मिल जाए, they will be more than happy।
उतना ही मैं कहना चाहूंगा एंड दैट्स इट। एफपीओ के ऊपर आप लोग भी सब लोग जितने जस्ट रिसर्च अबाउट इट, व्हाट इज एफपीओ। मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और इसको इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट फार्मिंग को एक साथ मिला सकती है। तो कभी उसके ऊपर रूम होगा तो मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करना आप लोग, मतलब उसके बारे में पता लगाना। जो भी ये कहते हैं ना कि गरीब किसान कॉर्पोरेट के सामने जाएगा तो कैसे बात करेगा, उसको तो कॉर्पोरेट दबा देगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सब के बारे में उसमें थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगा आपको कि दैट इज द आंसर, दैट हाउ एफपीओ इज गोइंग टू हेल्प इन डीलिंग बिटवीन कॉर्पोरेट फार्मर, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री एंड जो गरीब फार्मर है। Thank you so much, Rishi. Chintan, last 30 seconds. नहीं, मैं कुछ नहीं कहना, मतलब मैं ये कहूंगा कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट। Okay. आयुष जी आप अपना बात जी सर। Guys, look, bringing laws and repealing the laws are part and parcel of democracy. We need to respect that. But again, one thing, guys, that we need to understand out here, and even Akhand Bharat ka sapna, everyone, me, Santosh, or everyone are in the opinion that nothing should go above the nation. Rather, we must respect our nation, and any element that comes and has the tendency of creating the divide in terms of religion, polarization, giving money, and creating a separatist behavior, this must not be tolerated, and this must not be respected. Yes, sometimes you are not really happy with the government. This time will come. But again, one thing that we need to understand out here is that you need to love your country. You actually do not want, or you must not provide support for a separatist behavior that Khalistanis have been showing. So yeah, that I want to say. Respect each and everyone. Respect your country. Respect your sovereignty, and respect your nation. You do not want to have this divide. Do not fall into the traps of Khalistani. Do not divide the people in terms of religion, in terms of caste, especially, which can ultimately have a huge harm towards India. That's all I want to say. Thank you so much. Jai Hind. Over to you, Santosh. Thank you. I'll just conclude and I'll share my points here. I just want to say that we trust Narendra Modi and we have voted for nation. हमें दुनिया भक्त कहती है, सर हम भक्त हैं क्योंकि हमने देशभक्त को वोट किया है, ठीक है। हमने एक प्लेट बिरयानी या 500 रुपए के लिए वोट नहीं किया है। आई थिंक इतना सब होने के बाद गवर्नमेंट डिफेंसिव नहीं रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा मेजोरिटी आपको डिफेंसिव होने के लिए नहीं दिया है। ये मतलब कोई टुक टुक खेलने की बात नहीं है, ठीक है। आपको सेंचुरी बनाने के लिए वोट दिया है, तो हम आशा करते हैं कि आगे ये जो फीडबैक है ये गवर्नमेंट तक पहुंचे और गवर्नमेंट को अपनी गलतियों का एहसास हो और पूरी होमवर्क के साथ आगे अपना काम करे। इसी आशा के साथ मैं ये रूम बंद करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज ये क्लब को फॉलो कीजिए। ये क्लब में चाहे किसी का कैसा भी व्यू है, हम उनको पूरी तरह मौका देते हैं अपनी बात रखे, आराम से अपनी बात रखे, चाहे वो कैसा भी व्यू हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम ये रूम एंड करते हैं। Did that account is gone. I don't use it anymore. Okay, cool. This is much better. I get to have real conversations with people. I guess this is simpler. No worries, man, because I've